and I hope that this will be a yes. Sir, a very good evening to sir. A very warm welcome to all my guests, KB sir, Shashi ma'am, and obviously Mathli sir. You are the everything of this. So before starting this session, I would like to brief. I would like to tell something about KB sir. Uh, Mr. KB Singh sir is a retired IPS of 1985 batch. He is having extensive experience as he was ex-DGP of Odisha and has also worked as Director cum DGP of Odisha Vigilance. Also has worked with central government on deputation and is recipient of President's Medal for Meritorious Service. Sir, a very warm welcome to this show, sir, and we'll be expecting a lot from you. And Shashi ma'am, I would like to introduce you. As Shashi ma'am is an alumni from Symbiosis Law School, Pune, and she is practicing advocate in before Honorable Supreme Court since 2012. And as we all know that Mathli Saran sir is present DGP of State of Madhya Pradesh Police and Reform. Sir, before starting this webinar, I would like to tell that what is the objective behind crime-free Bharat. I will just take I will just take 2 minutes that what is actually the vision of crime-free Bharat. Thereafter, I will invite Mathli Saran sir to give his views. Then KB sir will give his views. Then Shashi ma'am will give his views. Then there will be a discussion among all of us. So, crime-free Bharat is basically armed with 5 pronged strategies. Number one, that there has to be a certainty of registration of FIR. Number two, there has to be certainty of detection with 21 technologies at the service of investigation officer. Number three, certainty of conviction with plenty of digital and non-digital infallible evidences. Number four, certainty of prevention through dynamic and proactive deployment of police and community volunteers. And number five, certainty of rehabilitation of criminals. Along with this, we have some other more objectives like job and services, rich Bharat with trained and specialized manpower, green herbal medicine free and healthy Bharat, milk rich Bharat with cow as mother cow and Vedic culture, machine equipment and tool rich Bharat by pooling resources from owners, clubs, creatives, innovative and dynamic Bharat, Atmanirbhar and Samarth Bharat, groundwater and rich Bharat. So, sir, since this is your vision and we are here to support you with all forms which we can support, तो पहले मैं गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इस क्राइम फ्री भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको इन ब्रीफ पूरी तरीके से हमें आप एक्सप्लेन करें प्लीज सर मैथिली सर Mr. KB Singh, he is my old friend. We worked together when we were in ITBP, and it is nice to have Shresi Bitia with us. Let for some time जो है हम क्राइम फ्री भारत को हल्का सा मिस्ट्री में रखते हैं, और मैं चाहूँगा कि बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनके क्या अनुभव हैं, वो अनुभव जो है के साथ वो अपनी बात रखें और फिर वो मुझसे प्रश्न पूछें कि उन परिस्थितियों में अपराध मुक्त भारत उन्हें कैसे मदद करेगा. बिकॉज मेरे बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें मैंने अपराध मुक्त भारत कैसे होगा बहुत कुछ सारी चीज़ें कही हुई हैं. तो यदि मैं कहूँगा तो उसी बात को दोहराऊंगा तो आनंद नहीं आएगा. तो बेहतर ये होगा कि अपराध मुक्त भारत के बारे में मैं इनके प्रश्नों के माध्यम से जवाब दूं. और मैं ये चाहूँगा कि चूँकि मिस्टर केवी सिंह इतना बड़ा अनुभव है, वो स्वयं जो है डीजी उड़ीसा रहे हैं, अभी शॉर्टली ही रिटायर हुए हैं, उनका बहुत रिच अनुभव है. और श्रेयसी बिटिया जो है शी इज हरसेल्फ वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो इनका भी जो है अपराध से और आज की व्यवस्था से बहुत गहरा ताल्लुक है. और एक अपने आप में बड़ी विडंबना की बात है जबकि एफआईआर लिखाना
दिन प्रतिदिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस माहौल में एक अधिकारी जो है ये कहने की हिम्मत जुटा रहा है कि अपराध मुक्त भारत संभव है। तो मैं इसी इनिशियल कोट के साथ, चूंकि केवी सिंह जी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट श्रेयसी बिटिया तो शी कैन ओपन द डायलॉग एंड देन so you can narrate your incidents, your experience, and then you can ask question that will help me to elaborate on the concept of Aparadh Mukt Bharat. Thank you, sir, giving me opportunity on this platform. केवी सिंह, आप अपना आप जो है reciprocate. उसको ऑन कर लीजिए अपना। आप जो है आपका वीडियो क्या ऑफ सर? है, आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। या दैट्स मेरा पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है, वीडियो आ नहीं रहा है। गुड। It's on now. Yeah, now Yes, it's yeah. You are getting me on video. Yeah, yes. मुझे नहीं आपको हम दिखाई देख दे भी रहा रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, प्लीज। yes. So this is a very good platform, sir, to discuss this very important topics, hot topic of the society, how to make crime-free India. Certainly, it will help the educating the public also, and more public will come forward to give their opinion and enrich us also in making. If we will send some suggestion to the government also. So let us start with the preventive measures of the crime, sir. How we can preempt the happening of the crime in the society? What do you appreciate? Yeah, बेसिकली आप जो है चौथी सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। ये पूरा जो अपराध मुक्त अभियान है ये 5 सर्टेनिटी को दे रहा है। पहली सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, बिना जो है ना थाना जाए। और दूसरी सर्टेनिटी उसमें है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, जिसमें कि थानेदार को जो है वो सब चीजें उपलब्ध होंगी कि वो एक बहुत ही साधारण किस्म का जो है ना विवेचक बहुत अच्छी विवेचना कर पाएगा। बल्कि उसको यदि हम इस ढंग से कहें कि उसे घटिया विवेचना करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रियल टाइम बेसिस पे जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको इंटरप्रेट करके हॉटस्पॉट्स और क्रिमिनल क्लस्टर्स और रूट्स, उस सब से रिलेटेड ढेर सारी जो है इनपुट रियल टाइम बेसिस पे आईओ को मिलेंगी। आगे चल के रोबोटिक और ड्रोन का भी जो है इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही कि हम जो है, और ये बड़ा डायनामिक होगा, उसको जो है बहुत समझदार होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जो है जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, ऐसा सिस्टम उस अपराध के हालात को समझ के अपने आप को परिवर्तित करके बिना किसी बटन को दबाए वो जो है उस विवेचक को गाइड कर पाएगा और उसको क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वो कंट्रोल कर पाएगा। यदि जो है विवेचक किसी कारण से अपना काम क्वालिटी से नहीं कर रहा है तो वो उसको गाइड करेगा। और इसके साथ में एक एक्सपर्ट ऐप बनाया जा रहा है जो कि सीधे जो है एक्सपर्ट को सीन ऑफ क्राइम से जोड़ेगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि डॉक्टर इलाज करता है तो आजकल रोबोटिक्स और आईओटी डिवाइसेस से दूर से बैठ के भी इलाज संभव है, ऑपरेशन संभव है। तो उसी तरीके से एक्सपर्ट जो है दूर रहते हुए, हो सकता है दूसरी कंट्री में बैठा हुआ हो, वो रियल टाइम में अपराध को जो है विवेचना में फील्ड में मदद कर पाएगा। उसके जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह हैं वो आईओटी डिवाइसेस से के तहत जो है ना हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहां से जो वो माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं वो भी इंटीग्रेट होकर रियल टाइम बेसिस में विवेचक को मिल पाएगा। इस तरीके की बहुत भारी व्यवस्था। और जो आप रिक्विजिशन करना चाहते हैं वो उसको क्या रिक्विजिशन करना है, तो 91 सीआरपीसी के तहत जो है ना वो कैसे रिक्विजिशन करेगा, ये सब चीजें भी वो उसको दे पाएगा।
तो जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी हाई होगी कि डिटेक्शन विल बी ए सर्टेनिटी। फिर कोर्ट की हम बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, तो और उसमें ढेर सारे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो श्रेयसी को थोड़ा सा आई विल बेग हर पार्डन कि जो डिफेंस लॉयर जो है जो मैनिपुलेट करते हैं, that manipulation will not be an option in future. That is my guarantee. So there will be certainty of conviction. जब दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको विस्तार से बताएंगे। अभी अपन जो है चौथी सर्टेनिटी पे आते हैं, जिसका क्वेश्चन माननीय श्री केवी सिंह जी ने पूछा है। जो चौथी सर्टेनिटी है, दैट सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। नाउ ये बड़ा जो है ना एक कदम होगा। जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब आपके थानों में तो 128 का जो है बल है, जिससे आप थाने को रखाएंगे, क्या आप विवेचना करेंगे और आप क्या प्रिवेंशन करेंगे। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने उनको याद दिलाया कि आप शायद जो है 39 सीआरपीसी को ठीक ढंग से नहीं पढ़े हैं। 39 सीआरपीसी में हर व्यक्ति के ऊपर ढेर सारी जो है ना जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं जो बिल्कुल पुलिस तुल्य हैं। तो हमारे पास जो है जनता के जितने भी लोग हैं वो सब जो है पुलिस वाले हैं। हमने वर्दी पहनी हुई है, उन्होंने सिविल ड्रेस में है। वो हमें अपने काम के लिए वेतन मिल रहा है, उन्हें बिना वेतन के उनके ऊपर वही जिम्मेवारियां हैं। इसका मतलब है कि जो पुलिस ऑफिसर है और जो पब्लिक है वो काफी हद तक आइडेंटिकल काम कर रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि इतनी बड़ी चीज को हम क्यों अब तक पब्लिक के सामने नहीं ला पाए। तो ये सिस्टम जो है या सर, there is a recommendation of police commission to separate law and order with the investigation. We will come on that. We will come on that. We will come. Let me systematically elaborate on your point. I will come very emphatically how this will be doing that job and how smartly it will be doing this job. जो आप बात कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को भी बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है। आपका जो आपने मुद्दा उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे क्राइम को निगलेक्ट कर दिया गया है। और लॉ एंड ऑर्डर भी हम बहुत प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर रहे हैं। जहां 500 आदमी से काम चलना चाहिए वहां पे हम अपने पॉलिटिकल आकाओं को दिखाने के लिए 5000 लोग लगा देते हैं, और कोई हमको ये क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है कि आपको ये 500 लोगों से ये चीज हैंडल हो सकती थी, आपने 5000 के लोग क्यों लगाए हैं। तो आज ये स्थिति बन रही है कि हर कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगा है और क्राइम ने जो है ना बैकग्राउंड ले लिया है। हम पुलिस ऑफिसर ऑल द टाइम बिजी इन लॉ एंड ऑर्डर और वीआईपी सिक्योरिटी एंड क्राइम में जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनका रोल जो है, आप सहमत होंगे, आपका इतना लंबा अनुभव है कि हमारा कंट्रीब्यूशन सुपरविजन में बहुत गिर गया है और वो क्वालिटी जो है ना कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही कम हो गया है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम एज एसपी मीटिंग लेते थे तो बहुत सारे डिटेल में हमारी मीटिंग कई बार दिन भर चलती थी, क्योंकि हम एक एक केस की विवेचना के बारे में बात करते थे। अदरवाइज आप याद करेंगे कि हम में से अधिकांश जो है वो क्या पूछते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, चालान क्यों नहीं हुआ। सो नोबडी टॉक्स अबाउट द एविडेंस। तो यदि हम जो है क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट कर देते हैं तो इससे बहुत भला होने वाला है। और जो लोगों के मन में बात है कि साहब जो है ना इतना फोर्स नहीं है, ये सब ढकोसला है। मैं इस बारे में जो है आपको अपने सीआरपीसी के अनुभव से आपको बताता हूं। जब मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर था और हमने जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे सभी हमारी पूरी फोर्स जो है ना कहीं स्टैटिक डिप्लॉयमेंट में लगी हुई थी, या तो वो रूट ओपनिंग में लगी हुई थी या वो किसी वीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर को गार्ड कर रही थी, किसी पावर स्टेशन को गार्ड कर रही थी। और ऑपरेशन के नाम पे फोर्स लगभग बहुत कम था। तो जब मैंने कहा कि हमको ऑपरेशन करना है तो उन्होंने कहा साहब फोर्स ही नहीं है। सो वी केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जान के ताज्जुब होगा जितने जगहों पर संभावित ऑपरेशन और ऑपरेशन की संभावना थी कश्मीर जैसे हालातों में और कश्मीर जैसी जगह में
उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया और हर ऐसी जगह के लिए एडवांस में ऑपरेशन प्लान बनाया गया और उसके लिए जितना फोर्स चाहिए था वो सब फोर्स आया। वो कहां से आया? क्योंकि हमने पूरे ग्रुप को 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांटा। एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसके बटालियन के क्षेत्र में है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। यदि एडजॉइनिंग जो है एरिया में आप हैं तो आपकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि हम आपको बहुत दूर से खींच के ला रहे हैं, जैसे साउथ कश्मीर में हमें ऑपरेशन करना है और हमारे पास साउथ कश्मीर का बल पर्याप्त नहीं हो पा रहा है और हम आपको यदि नॉर्थ कश्मीर से खींच रहे हैं तो वो आपकी टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसमें फिर कमांडेंट्स ने हर के जो है ना उनके ऑपरेशन प्लान बनाए और जिनको हमने पहले रेसल भी किया। हमने जो है इस दौरान 130 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया और पब्लिक की तरफ और फोर्स की तरफ कोलेटरल डैमेज 0 था। उस समय सीआरपीएफ में बहुत सुसाइड्स भी होते थे और ये फख्र की बात है कि इस दौरान सुसाइड भी नहीं हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉ एंड ऑर्डर में यदि हमने एक बार ईयरमार्क कर दिया, चाहे वो 128 का बल हो, चाहे 1220 का हो, चाहे 100 का बल हो, हम उसको जो है उस कंपोनेंट को ज्यादा महत्व दें जो क्राइम को हैंडल कर रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर का एलिमेंट है, जिम करिए कि बहुत छोटा थाना है तो उसमें 2 सिपाही यदि बच रहे हैं तो हम 2 सिपाही को लॉ एंड ऑर्डर के लिए ईयरमार्क करें। अब अज्यूम करिए जिस थाने में 2 सिपाही आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए ईयरमार्क किए, वहां आपको 500 लोगों को डिप्लॉयमेंट करना है। सिस्टम चर्न करके उसको जो है खींच लेगा, चाहे वो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खींचे, चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खींचे, चाहे टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब जो है ना यदि हम डीएफ के उस हिसाब से कहें तो जिले के अंदर का है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिले के बाहर को यदि हमने रेंज को इंक्लूड किया तो जो है ना सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि हमने पूरे मध्य प्रदेश को ही कर लिया तो टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या हम उसको और उससे ढंग से कहें तो हम कहें कि साहब जो है जिले का है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट का है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि हम स्टेट के बाहर चले जाते हैं तो टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि स्टेट्स के रिसोर्सेज जो है ना कुछ महाबलियों के लिए कम पड़ रहे हैं, तो हम जो है ऐसे महाबलियों को हैंडल करने के लिए इवन स्टेट के बाहर से जो है वे रिसोर्सेज को ले सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो है केबी सिंह साहब को ये हो सकती है कि साहब आप कैसे ले लेंगे, पुलिसिंग तो जो है स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 2 संविधान में दिया हुआ है, तो आप जो है कैसे जो है ना बगल की स्टेट से आप फोर्स ले लेंगे। तो या तो हम पहले वाले मॉडल पे चलेंगे कि विद इन स्टेट मैनेज कर लेंगे, और यदि हम दूसरे मॉडल पे भी जाना चाहते हैं तो हम ये भूल रहे हैं कि देयर इज अनदर एजेंसी, देयर इज अनदर एंट्री 65C इन लिस्ट 1 जो कहती है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम उस के तहत जो है ये रोपिंग इन करने में, स्पेशली क्राइम पार्ट पे, वी कैन डू इट वेरी इफेक्टिवली अंडर द प्रोविजन ऑफ 65C। अब जो है ये लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम वाला जो बिंदु चूंकि उठाया था, मुझे लगता है कि केवी सिंह साहब को इसका जवाब मिल गया होगा। फिर मैं उनके मूल विषय पे जाता हूँ कि हाउ द प्रिवेंशन वुड बी पॉसिबल। तो मिस्टर केवी सिंह, डू यू हैप्पी विद माय आंसर और you would like to say something? I would like to add something, sir. Please. First thing is there is a vast gap between the police public ratio, ideal police public ratio, and the availability of the force. First thing. Second thing, why we are using maximum force as a DGP and a different. I have been almost about 14-15 districts also. So we are using minimum force, sir, because once you use the force, it becomes a political issue, and it can terminate into anything. So when you are not able to use the force, then you display the force. It's why in the police we show maximum force. जहाँ हम 10 पे काम चला सकते हैं, हम 20 ले जाते हैं, because we are not going to use it, sir. And use of the force, no political party likes it. ये जो है ये पॉलिटिकल पार्टी की लाइक और डिसलाइक ही तो सब समस्या पैदा कर रही है।
सब चीज, let me complete, sir. Let me complete, sir. हाँ, So that is minimum use of force. We display maximum force, sir. That is display of the force because we are not going to use it. First, our force is short. Police-public ratio, we are not able to meet the ideal situation. And third, sir, we are exhausting the force. If we will add to the 8-hourly duty to the police station also. That will help us. केवी सिंह साहब जो है ना, आपका क्वेश्चन बहुत लाजमी है और इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि जो रेशियो है, यदि हम किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर करें या स्टेट टू स्टेट कंपेयर करें, इस बात को बहुत सारे कमीशंस ने, बहुत सारी कमेटी ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है एंड वी कांट डिसएग्री विद दैट बिकॉज दैट इज ए रियलिटी। लेकिन एट द सेम टाइम यदि हम इसको थोड़े से दूसरे नजरिए से देखें कि यदि हम पब्लिक को एज ए पुलिसमैन अपने साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये नंबर गेम काफी हद तक हम जो है ना मैनेज कर पाएंगे और अब ये टेक्नोलॉजी इसमें हमारी बहुत मदद कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये इम्प्रेशन जो है खत्म करना पड़ेगा कि हम फोर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। यदि आप फोर्स का सिर्फ डिस्प्ले करेंगे तो आप पत्थर खाएंगे और आप पत्थर खा रहे हैं। आज पुलिस फोर्स की जो है ना लोग बाग जो है ना कॉलर पकड़ रहे हैं बिना कारण के, क्योंकि दे नो कि ये जो है, ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है ये बिजूका है, इसको जो है ना कोई भी पावर का यूज करने का नहीं है। जो सेक्शन 129 सीआरपीसी में जो पावर आवर लिखे हुए हैं ये सब जो है ना ऑफिसर्स ने सब इनकी हवा निकाल दी है। ये हवा निकले हुए बुत हैं जिनमें कोई ताकत नहीं है। इस इंप्रेशन को हम जितने जल्दी खत्म करेंगे, वी शुड नो कि वी विल बिहेव रिस्पॉन्सिबली, वी शुड बिहेव जो है प्रॉपरली। और यदि हम जो है देखेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर होती है इसमें क्रिमिनल एलिमेंट हावी होते हैं, तो यदि हम जो दिव्य चक्षु की बात कर रहे हैं, यदि हमें ये मालूम हो तो बदमाश जो है ना लॉ एंड ऑर्डर में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो है एक बहुत इफेक्टिव तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपराध मुक्त भारत जो है लॉ एंड ऑर्डर में भी पुलिस के डिप्लॉयमेंट में मदद करेगा, उसके प्रिवेंटिव अरेस्ट में भी पुलिस की मदद करेगा। एंड नाउ यदि पॉलिटिकल पार्टी जो है देश हित की बात नहीं करती है, देन दे शुड लिमिट देमसेल्फ इन द पॉलिसी डोमेन ओनली। सर एक सेकंड बता दें सर, विद द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, अब लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी बात नहीं है, हम ऑलमोस्ट वीडियो कैमरा हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द पुलिस कंट्री। नहीं, आप बहुत छोटे दर्जे की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, हम टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं and that helps us in the identify the persons who are throwing stone etc. ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम लोग ड्रोन से यूज कर, आजकल ड्रोन तो हर जगह यूज होने। हमको ये मालूम होगा कि जो नेता ये आंदोलन करा रहा है इसके कौन कौन से जो ना लॉ एंड ऑर्डर के हैं। हमारे एक एसपी ने बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक ही वाज एसपी खरगोन। उसने क्या किया कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो लॉ एंड ऑर्डर में क्रिमिनल इनका रिकॉर्ड है और जो कि वो करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम लगाया, येलो कार्ड और रेड कार्ड, और उसको लिटरली रेड कार्ड और येलो कार्ड उसको सर्व किए गए, सो दैट आई नो दैट यू आर क्रिमिनल, आई नो कि आप लॉ एंड ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपने एक सीमा उल्लंघन की, यू आर अंडर वॉच। अभी क्या होता है कि जो अपराधी है वो आपको कमजोर महसूस करता है, वो नेता के साथ जो है ना डायाज पे बैठता है। इसमें ना नेताओं को शर्म है, ना पॉलिटिकल पार्टी को शर्म है, किसी को शर्म नहीं है, किसी सबने लाज लज्जा छोड़ दी है। एक चपरासी की जो है ना पोस्टिंग होती है तो उसके लिए जो है ना उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हम कैसे जो है ना ये पॉलिटिकल पार्टी में प्राइमरी मेंबरशिप जो है ना बिना वेरिफिकेशन के देते हैं। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि साहब नेता तो जो है ना कुछ आंदोलन करते हैं, उनके खिलाफ तो कुछ ना कुछ केस रजिस्टर हो जाते हैं, तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो मैं ये बात को मानता हूं कि उस पुलिस वेरिफिकेशन में उनके खिलाफ जो भी केसेस होंगे जो किसी आंदोलन से संबंधित होंगे उनको हम जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध मर्डर कर रहा है, शुद्ध अटेम्प्ट ऑफ जो है ना मर्डर कर रहा है, जो कि रेप कर रहा है, जो कि जो है हथियारों का जो है ना डिस्प्ले कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों जो है ना हम हर चीज क्यों ब्यूरोक्रेसी से अकेला मान रहे हैं? ये बात जो है ना पॉलिटिशियंस क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं, जो कि नेता हैं, जिनको इस देश को चलाने की जिम्मेवारी है। इट हैज टाइम हैज कम, दे मस्ट बिहेव रिस्पॉन्सिबली।
We सर, आप public जो must tell them behave responsibly, otherwise ये सर होना चाहिए जो कर रहे हैं. आई थिंक some matter is pending in the Supreme Court also regarding this one. नहीं, सुप्रीम कोर्ट से काम नहीं चलेगा. ये हम जो है ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा. ब्यूरोक्रेसी का काम था, आपने सुना होगा एस मिनिस्टर, तो वो जो कहता है एस सर, बट ये बट गायब हो गया है. नहीं, देखिए जस्ट मिनट, देखो केवी, unless we talk, just a minute, please allow me to elaborate on this. हम जो पहले जो है ब्यूरोक्रेसी से अपेक्षा होती थी, वो पहले एस सर कहता था और फिर एक लॉजिकली कारण देता था कि साहब ये क्यों नहीं होना चाहिए. कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा, वो भी पत्रकार था, उसने मुझसे पूछा कि सर आप कैसे मैनेज करते हैं, पुलिस में तो बहुत इंटरफेरेंस है. मैंने कहा नहीं, पुलिस में तो इंटरफेरेंस 0 है. उसको मेरी बात इतनी अजीब सी लगी कि कैसे पुलिस अधिकारी हैं, दुनिया कह रही है कि इंटरफेरेंस है और ये कह रहे हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है. तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि इंटरफेरेंस की परिभाषा क्या है, कि कोई मुझसे ऐसा काम करने के लिए कहे जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो. जब हम जो है पहले सोच रहे हैं कि हमारे आका क्या चाह रहे हैं और उनके बिना कहे हम वो कर दे रहे हैं, तो इंटरफेरेंस कहाँ है? दिस इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो अब ब्यूरोक्रेसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पहुंच गई है, जहां पे कि हमारी जो काम है हम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, और जो निर्लज्ज लोग हैं, ओछे चरित्र के लोग हैं, वो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बिकॉज दे आर ट्रीटेड टू बी टैक्टिकल. इन जो टैक्टिकल लोगों के लोग हैं, इनको आईना दिखाने का समय आ गया है. इवन पॉलिटिकल पार्टी को भी यदि जरूरत पड़ती है तो उन्हें भी आईना दिखाने की जरूरत है. इस डेमोक्रेसी में एवरीबडी मस्ट बिहेव रिस्पॉन्सिबली. पब्लिक सुप्रीम है, पब्लिक को उठ खड़ा होकर कहना ही होगा कि इनफ इज इनफ. सर एक बात बता दें आपको सर, जो बात घूम फिर के आती है, दिस बिकम द विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट. आई एम ऑडिबल सर? ये विनेबिलिटी, जब ये विनेबिलिटी गायब हो जाएगी ना, तो वो विनेबिलिटी देखिए. अभी देखो जस्ट अ मिनट, केवी यू हैव रेज्ड वेरी ओके, प्लीज. I have talked to the senior politicians also and even big leaders. उनका यही कहना होता है कि यार हमें पहले तो हम चुनाव जीते, उसके बाद देखेंगे. और घूम फिर के उनके पास आता यही कि कौन उनके पार्टी को वोट दिला देगा और कौन वोट पोलिंग करा ले जाएगा. इस क्राइटेरिया पे जो कैंडिडेट खरा उतरता है उसको. और सुनिए सर, और मेरा पर्टिकुलर अनुभव है, पब्लिक ये अच्छे आदमियों को वोट उतना देना ही नहीं चाहती. पब्लिक की वोटिंग की क्राइटेरिया उस रात को पैसा कौन बांटता है, कौन दारू पिलाता है, इस क्राइटेरिया पे अल्टीमेटली जाके पुलिस पब्लिक वोट दे देती है. देखिए मैं अच्छा ओके, you will be able to educate them really उनकी वोट की वैल्यू क्या है, how they can decide. और इतने एजुकेट हो जाए, सिस्टम विल बी चेंज. अदरवाइज ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा. आप देख लीजिए सर अभी यूपी में क्या हुआ विकास दुबे केस में. 60 केस विवेक दुबे के केस में जो है, मेरा बहुत फर्म मानना है कि विवेक दुबे जो भी आज थे, उन्हें हमने विवेक दुबे बनाया था. विकास दुबे हाँ सॉरी विकास दुबे. विकास दुबे जो है ना, आज विकास दुबे बन के जो है ना उनका एनकाउंटर हुआ, वो विकास दुबे जो है ना हमारे निर्माण थे, हमारी निर्मित कृति थे. वो जब हमारी निर्मित कृति कहेंगे तो उसमें राजनेता भी आ जाएंगे और हम ब्यूरोक्रेसी भी आ जाएंगे. जब उसके खिलाफ ऑपरेशन जा रहा था तो हमारे 200 लोग जो है वो विकास दुबे को गाइड कर रहे थे, उसको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे थे. आपके जो है संविधान में 311(2) भी है. हम ये लाइन अटैचमेंट का और ये डी का ड्रामा क्यों करते हैं? Why are we not dismissing them summarily and अरेस्ट करके जेल भेजें? It will set a strong example. ये तो हो गई है ब्यूरोक्रेसी की बात, पुलिस की बात. Now let's talk about राजनेता also. जितने भी राजनेता उनके सपोर्ट में थे, इसके सब टेक्निकल एविडेंस अवेलेबल हैं. इसके लिए किसी एसआईटी की जरूरत नहीं है.
यदि यूपी पुलिस को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाए, आई विल गाइड देम, आई विल डू दैट एनालिटिक्स एंड आई विल गिव द डिजिटल प्रूफ अबाउट एवरीथिंग अबाउट देयर राजनेता। अब मेरा जो है ना पार्टियों से कहना है कि आप उनको जिस पद पे भी बैठे हैं उनसे बाहर करो, यदि वो किसी पद पे नहीं बैठे हैं तो उनको प्राइमरी मेंबरशिप से बाहर करो और उनको केस में अरेस्ट करो, जेल भेजो। लेट एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल, क्योंकि जो है अब इतने सालों के बाद इतना कब तक हम धैर्य करेंगे, कब तक हम जो है जस्टिफिकेशन के कारण ढूंढेंगे। अब जस्टिफिकेशन के कारण ढूंढने का समय खत्म हो गया है। अब समय हो गया है कि पब्लिक जागृत हो और लोगों से जो है ना, नाउ पीपल मस्ट वर्क फॉर इट। दिस इज माय वेरी हम्बल सबमिशन एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील। पूरा कमेटी रिकमेंडेशन को भूल जाइए, अपन कोई कमेटी की बात ना करें, अपन सिर्फ लॉ की बात करें। लॉ में जो है यदि मान लो ये उसकी कंस्पायरेसी दिख रही है तो साले को डिसमिस करो 311 2B में, नो डी नथिंग। इसमें संविधान में प्रावधान है कि जहां पे प्रैक्टिकल नहीं है डी होना, वहां पे आप डिसमिसल करिए, तो डिसमिसल करिए सीधा और लेट हिम प्रूव हिज इनोसेंस। यदि इनोसेंस प्रूव हो जाएगी तो फिर आ जाएगा वो नौकरी में। ऐसे नालायकों को नौकरी में ना रहने के बाद यदि बाद में आके तनख्वाह भी देना पड़े तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम वो रिफॉर्म तो हो जाएंगे और बाकी लोग रिफॉर्म हो जाएंगे। वैन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं तो हम उनका उपयोग करें। कहीं ना कहीं हमें वह हिम्मत जुटाना ही होगी। और केवी सिंह साहब जो है, हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग इतने सारे, जस्ट मिनट, हम लोग इतने सारे अनुभवों से जुड़े हुए हैं तो हमारा सोच जो है ना एक घोड़े जैसा हो जाता है, हम उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते हैं। मेरे ख्याल से श्रेयसी को मौका देते हैं, लेट हर गिव हर व्यूज। गुड इवनिंग सर। पहले तो मैं आपको बहुत कांग्रेचुलेट करूंगी और शुभकामनाएं दूंगी कि आपने क्राइम फ्री इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि इस मूवमेंट की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। मैं आपके सामने डाटा पेश करूंगी। PSR की रिपोर्ट है कि करंटली इंडिया में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं और इन 3 करोड़ केसेस में 86% ऑफ द केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पेंडिंग है। इन 86% ऑफ द केसेस के 80% ऑफ द केसेस क्रिमिनल मैटर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में क्राइम का रेट क्या है, कन्विक्शन का रेट क्या है, और जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, जिनके लिए ये लिटिगेशन स्टार्ट हो जाता है, वो एक्यूज्ड हो या वो विक्टिम हो या वो विक्टिम की फैमिली हो, उनको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो क्राइम फ्री इंडिया की मुहिम डेफिनेटली एक ऐसी मुहिम है जो हमें शुरू करनी चाहिए थी आज से बहुत साल पहले, लेकिन अगर आपने अब शुरू किया है तो आपको इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड शुभकामनाएं। सर, मैं आपसे एज अ एडवोकेट मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जी सर, एज एन एडवोकेट मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने अपने मिशन में एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की बात की है और आप मुझसे कह रहे थे कि रेट ऑफ कन्विक्शन पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, तो क्या आप हमें थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम से हम एक जो हमारा एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है बियॉन्ड गिल्टी बियॉन्ड डाउट्स, जिसके कारण हमारे बहुत सारे कन्विक्शंस नहीं हो पाते हैं, तो उस एक रिक्वायरमेंट को, गिल्टी बियॉन्ड डाउट वाले रिक्वायरमेंट को, हम क्राइम फ्री इंडिया का जो एक सेगमेंट है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सेगमेंट, इससे हम कैसे हासिल कर सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और इसके माध्यम से मैं उन पेचीदगियों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा जो कि आम जनता तक पहुंचना चाहिए। बेसिकली हमारा पुलिस ऑफिसर जो विवेचक है वो इस समय ना तो उसके पास राइट काइंड ऑफ स्किल सेट है, ना ही उसके पास समय है। वो जो है कुछ भी करके जो है अपनी जिम्मेवारी पूरी करना चाहता है। जनता का हाल ये है कि जनता जो है ना तो बयान देना चाहती है, ना कोर्ट में गवाही देना चाहती है। तो फाइनली क्या होता है कि वो अपने मन से 61 का बयान लिख लेता है, 161 का बयान लिख लेता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हमारे एक साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हमारे साथ मैंने उनके जिले का चार्ज उनसे लिया था, हमारे बहुत नज़दीकी भी हैं। एक दुर्घटना में उनके लड़के की डेथ हो गई। उस समय मैं SP भोपाल था
मैं मौके पे गया, मैंने अपने निर्देशन में पूरा साइंटिफिक असिस्ट वो जो ना वो किया। डॉक्टर सतपति जो हमारे साथ थे वो भी वहाँ मौके पे आए। हमारे डॉक्टर हर्ष शर्मा हैं जो कि अभी डायरेक्टर एफएसएल हैं मध्य प्रदेश में, वो हमारे एसएसओ थे, वो भी मौके पे आए। और हमने लॉकहार्ट प्रिंसिपल, ढेर सारे प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए बहुत सारे एविडेंसेस जो इकट्ठा किए, ठीक है ना। एंड वी आर फीलिंग पैटिंग अवर सेल्फ कि हमने अच्छा काम किया। वी कुड आइडेंटिफाई कि किस व्हीकल ने एक्सीडेंट किया, हम उसको अरेस्ट कर सके, सब कुछ हो सका। कुछ दिनों के बाद मेरे आजी साहब जो है, जो कि मिस्टर एस.के. दास साहब जो डीजीओ के रिटायर हो चुके, उनका फोन आया, बोला मैथिली जो है ना बाते साहब आए हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो मैंने कहा सर क्यों दुखी है? उनके केस का तो विवेचना मेरे सुपरविजन में हुआ और साइंटिफिक हुआ और हमने वो सब चीजें इकट्ठी की हैं और उसमें तो सर्टेनिटी के साथ जो है सजा भी मिलेगी। अब दुर्घटना को तो कोई नहीं टाल सकता है, अब बच्चे की जान गई वो तो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से बाते साहब को तो खुश होना चाहिए कि एसपी ने खुद अपने, क्योंकि मैं उनसे इतना जुड़ा हुआ था तो मैंने अपने सुपरविजन में वो सब काम कराया, तो वो दुखी क्यों है? तो ही सेड कि साहब उनका कहना है कि मैं एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा भी बयान नहीं लिखा है, पुलिस वाले ने मेरा बयान फर्जी लिख के जो है ना सबमिट किया है। हमारी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इतनी खराब है जिसमें कि दुर्घटना में एक बच्चे की डेथ हो रही है जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर का बच्चा है, और उसमें भी हम जो है ना उसके जो है ना बयान भी ठीक ढंग से नहीं ले सकते हैं। हमारी पुलिस ऐसी विवेचना कर रही है। इस विवेचना के बावजूद भी जो माननीय न्यायालय जितना भी कन्विक्शन दे रही है वो साधुवाद के पात्र हैं। यदि कोई कहता है कि साहब जो है, देखिए मैं एक और घटना सुनाता हूँ। मैं जब एसपी भोपाल था उसी समय की बात है ये, एक व्यक्ति मेरे सामने आया, उसने कहा कि साहब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो एक यंग एसपी का जो है थोड़ा सा अलग जलवा होता है और अलग सोच होती है, तो मुझे उसकी इस बात को सुन के बहुत गुस्सा आया और मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था। यदि कोई सुसाइड जैसी बात करे तो मेरे ख्याल से ज्यादा संवेदनशीलता मुझे उस समय दिखाना चाहिए थी, ऐसा आज मैं महसूस करता हूँ। लेकिन जो हुआ उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। तो मेरी इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन ये हुई कि ये क्या सुसाइड रजिस्ट्रेशन ब्यूरो है क्या, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि साहब मैं पुलिस के कारण सुसाइड करना चाहता हूँ जी। और उसके बाद जो उसने कहानी सुनाई वो बहुत हृदय विदारक है। उसने कहा कि साहब मेरी जो चाय की दुकान है आपके थाना सैजनाबाद के सामने है, मुझे पुलिस हर केस में गवाह बना देती है, मैं सुबह से लेके शाम तक कोर्ट में खड़ा रहता हूँ सर, मेरे बीवी बच्चे को कौन पाले? अब आप बताइए कि मेरे पास जो है ना सुसाइड करने के अलावा और कोई विकल्प है क्या? उसका जवाब सुन के मैं चारों खाने चित्त हो गया। मुझे नहीं सूझ पड़ा कि मैं इसको क्या कहूँ, क्योंकि उसकी ये तो बड़ी हृदय विदारक बात थी। मैंने उससे कहा देखो बेटे, जो कुछ हुआ वो हुआ, उसको बदलने की क्षमता मुझ में भी नहीं है, लेकिन मैं आज आपको से आश्वस्त करता हूं कि अब आपको किसी भी केस में गवाह नहीं बनाया जाएगा, जहां तू सही में भी गवाह होगा वहां भी नहीं बनाया जाएगा, ये मैं तुझे अभयदान देता हूं। तो हमारी पुलिस ये कर रही है। हम जो है रूट कॉजेज में नहीं जा रहे हैं। एज ए लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स वी आर नॉट सुपरवाइजिंग क्राइम प्रॉपरली। हमारे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, ये जो हम ऐप बना रहे हैं, जो चीजें बना रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ सुपरविजन को भी इवेल्युएट करेंगे। आने वाले समय में सीनियर ऑफिसर की नौकरी इतनी आसान नहीं रहेगी कि झंडा पत्ता लगा के घूम जाइए और आपका जो है ना कंट्रीब्यूशन जीरो। आप नेताओं से बात करिए, इससे बात करिए, फलाना करिए, लिफाफा लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लिफाफा कल्चर मस्ट गो। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई कहता है कि साहब जो है ना ये जो लिफाफा है ये तो 4 साल पहला रहा था, ये क्यों आया है, कि कोई कृष्ण की बात करता है, कोई पार्थ की बात करता है। ये हम बात क्यों नहीं कहते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए। जो कोई भी लिफाफा ले रहा है, हम इतने स्ट्रिंग ऑपरेशन करें कि लिफाफा लेना अपने आप में बंद हो जाए। जब तक हम जो है इतना एग्रेसिव काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वैसे भी लिफाफा लेना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एनीवे, क्योंकि लिफाफा जब पैदा ही नहीं होंगे तो देगा कौन। तो अभी चूंकि लिफाफे पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पे पार्टनरशिप हो रही है क्राइम में, तो लिफाफे चूंकि रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो फिर सामने वाला कहेगा कि साहब पूरी रेवेन्यू आप क्यों रखेंगे, तो रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है।
फिर रेवेन्यू शेयरिंग ब्यूरोक्रेसी में भी और बियॉन्ड ब्यूरोक्रेसी हो रही है। कई जगह पे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सुनने को मिलता है, आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी पोस्टिंग पैसे देके कराएगा तो उसके लिए इट विल बिकम ए बिजनेस, देन ही हैज टू टॉक इन टर्म्स ऑफ एज ए स्मार्ट बिजनेसमैन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर अब उसको बहुत प्रॉब्लम है, यदि उसकी पोस्टिंग जो है ना पैसे लेके हुई है तो उसको कंटिन्यूएशन का भी अमाउंट देना पड़ेगा, फिर जब उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो दोबारा पोस्टिंग के लिए भी चाहिए। तो ये विशियस सर्कल चारों तरफ से घेर रहा है। हम इस विशियस सर्कल के सामने अपने आप को मजबूर पेश ना करें। इस समय हो गया है कि हम आपको सक्षम पेश करें। ये डेमोक्रेसी है, यदि ये दूसरे तरीके से डुएबल है तो उस तरीके से इसे पेश आना ही चाहिए। हम सब लोग जो है ना अपनी लाचारी पेश ना करें। इसमें लाचारी में हम लोग लालची हैं, हम लोग मक्कार हैं, हम लोग धूर्त हैं। यदि हम धूर्त नहीं होते, क्योंकि हम वो कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिना नाम लिए कहता हूं कि जब मैं एडिशनल डीजी एडम था, कुछ लोगों का ट्रांसफर होना था, तो कोई आया मेरे पास के साथ ये ट्रांसफर नहीं हुए हैं, सीएम साहब थोड़ा सा इसमें रुचि रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि साहब इनका ये रिकॉर्ड है, जरा सीएम साहब को दिखा दो जाके। देखिए सीएम साहब की जो भी इच्छा है वो तो पूरी हो ही जाएगी, उसकी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैत्री शरण गुप्त की इतनी हैसियत नहीं है कि जो सीएम की इच्छा है वो पूरी ना हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसको उनको दिखा दीजिए, और यदि उनको इसको देखने के बाद भी वो इंसिस्ट करें तो वो हमको बता दीजिए, मैं ऑर्डर करूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा आप नहीं दिखा पाएंगे तो क्या आप मेरा सीएम से अपॉइंटमेंट करा सकते हैं? हाँ, उन्होंने कहा साहब ये हो जाएगा, कल 11 बजे आप आ जाइए, आपका अपॉइंटमेंट इज फिक्स्ड। अब मैं सीएम साहब के सामने गया, मैंने कहा साहब देखिए आप जो चाहेंगे, आई स्टार्टेड विद दिस, आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि ये गलत संदेश जाएगा, इनका ये रिकॉर्ड है, ये वो इनका वो है, आप इसको एक बार नजर डाल दीजिए और आप जो कहेंगे वही होगा। अब सीएम साहब ने मेरी बिना लिस्ट को देखे उन्होंने कहा नहीं, आपको जो ठीक लगता है वो करिए। तो मैंने कहा साहब जो 8 लोग हैं इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कि बॉर्डर एरिया में आते हैं, यदि इनको पोस्ट भी कर देंगे तो कोई गलत संदेश नहीं जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, फिर आप 2 को कर दीजिए और 6 को आप कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ प्रसन्न करने के लिए ऐसी बात करते हैं। यदि हम जिम्मेवारी के साथ राजनीतिक नेतृत्व के पास चीज ले जाएंगे तो राजनीतिक नेतृत्व आपकी बात मानेगा। इस बारे में हम बड़े जोर से बात कहते हैं कि लोग कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाई। मैं ये कहता हूं कि अब समय आ गया है कि दुल्हन वही नहीं होना चाहिए जो कि पिया को भाए, दुल्हन वही अच्छी होना चाहिए जो सुसंस्कृत हो, जो कि आचारवान हो, जो कि घर को संभाल के रखे, जो बच्चों को अच्छे ढंग से संभाले, ऐसी दुल्हन जो होना चाहिए। अब ये समय आ गया है कि हम जाके नेताओं को ये बताएं कि लॉन्ग रन में यही आपके हित में है और शॉर्ट रन बहुत ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। ये हर किसी को समझना होगा, तभी सही मायने में पुलिस रिफॉर्म संभव है। किसी ने मुझसे ये भी कहा कि आप सेवा में हैं, आपको नहीं लगता है कि आप कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहा हूं, मेरा ये पदी कर्तव्य है कि मैं पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात करूं। आपको जान के ताज्जुब होगा बेटे कि अभी हमारे 12 जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के हिस्सा है। जो आप बात कह रही थी कि अब हम उसका जवाब पे आते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ पेरिफेरल आंसर चले गए हैं। नाउ आई विल कम टू द कोर आंसर। कैसे ये सिस्टम जो है 21 टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन और कन्विक्शन पे ले जाएगा, ये आपका मूल क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक ऐप जो है ना बन रहा है, और बल्कि देखा जाए तो एक कहना तो गलत होगा, ऐसे हजारों ऐप बन रहे हैं जो बिल्कुल एक ऐप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये ऐप एक डायनामिकली कंस्ट्रक्टेड ऐप होगा जिसको हम इच्छाधारी ऐप कह सकते हैं। मतलब वो आपको कहीं कोई बटन नहीं दबाना है, वो आपके एफआईआर से कंटेंट से सब चीजें निकाल के आपको क्या करना चाहिए वो अपने आप के रूप को बदल देगा, और आपको जो है वो हर छोटी मोटी चीज को पकड़ेगा। वो जो आप शायद नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे वो भी उसे देख पाएगा, राइट।
आगे चल के जो है हम स्टार्टअप के माध्यम से ड्रोन और रोबोटिक सर्विसेज का भी प्रोविजन कर रहे हैं। इसमें मेरी बहुत कॉन्शियस सोच है कि ये डिवाइसेस हम जो है पुलिस को नहीं देंगे। यदि हम ये डिवाइसेस पुलिस को देंगे तो वो स्टोर रूम की शोभा बन जाएंगे। तो वो डिवाइसेस स्टार्टअप के पास रहेंगे, जो कम्पीट करेंगे उनके जो है ना रेट्स तय होंगे कि साथ आपकी सर्विसेज का आपको क्या पैसा मिलेगा, और सिस्टम से जैसे ही क्राइम होगा उनके पास रिक्विजिशन चला जाएगा। तो यहाँ तो ऐप्स में खुद ही जो है ना सब चीज कैप्चरिंग करने की व्यवस्था होगी, बट ड्रोन और रोबोट से भी जो व्यवस्था होगी दैट विल बी एडिशनल, तो वो और उसको अच्छा ढंग से कर देगी। एंड देन जो है सीन को कलेक्ट करना, देन उसको प्रिजर्व करना, जो छोटे मोटे टेस्ट संभव हैं उनको वो रियल टाइम बेसिस में वहां करेगी। देन आपके इस क्राइम को चूंकि जैसे जितना डिटेल कैप्चर होता जा रहा है वो डिटेल जो है ना डाटाबेस में जा रहा है, जो कि हिस्टोरिक डाटा से क्या इन्फ्रेंस निकलना चाहिए उसके ऊपर बड़ी बड़ी एल्गोरिथम काम कर रही हैं, जो इस एआई इंटेलिजेंस जो एआई के माध्यम से वो जो है क्या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम बेसिस में विवेचक को परोसी जा रही है। तो एक जहां पे उसको एविडेंस कलेक्शन में मदद की जा रही है, वहीं पे हिस्टोरिकल डाटा से जो खबर हो सकती है उसको निकाल के, जैसे हॉट स्पॉट्स, क्रिमिनल क्लस्टर, रूट्स यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स, एंड उस रूट्स पे जो सीसीटीवीज लगे हैं और आगे चल के ढेर सारे और लगेंगे जो हमारा, क्योंकि हम इसमें सरकारी पैसा खर्च करेंगे नहीं, तो आने वाले समय में इंडिया विल बिकम हब ऑफ द सीसीटीवीज एंड आईओटी डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और इससे इतना ज्यादा पैसा उनको मिलेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी समथिंग लाइक 3 months to 6 months और एट द मोस्ट में बी 1 year। तो जब एक साल में जितना पैसा आप लगाएंगे वो वापस मिल जाएगा, तो for their profit vision, n number of the people from the private sector, individuals, companies, corporate, they will come forward to put IoT devices, they will come forward to put the CCTV devices, क्योंकि उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे रहेगा, पुलिस विभाग कुछ परचेज नहीं करेगा। तो ये सिस्टम जो है ढेर सारी कैलकुलेशन करके IoT डिवाइसेस से और CCTV से भी एविडेंस कैप्चर करेगा, फिर उसको वैलिडेट करने के लिए वो पब्लिक के पास, आईओ के पास ले जाएगा, पब्लिक के पास ले जाएगा। आगे चल के हम इसमें लीगली एक्सेप्टेबल आइडेंटिफिकेशन का प्रोविजन रखेंगे, राइट? अभी हमारी वो क्षमता नहीं है, लेकिन हम वो क्षमता बहुत जल्दी 5-6 महीने में डेवलप कर लेंगे। तो हम लीगली एक्सेप्टेबल जो है आइडेंटिफिकेशन परेड में जाएंगे, जिसमें रिमोटली मजिस्ट्रेट का पार्टिसिपेशन होगा। इसमें कहीं ट्रांसफर ऑफ पावर कहीं नहीं है। We will use the magistrate for that purpose and they will be playing their role in identification। तो हम आइडेंटिफिकेशन जैसी चीजों को वो यूज करेंगे। देन जो है 91 CRPC के तहत क्या रिक्विजिशन करना है ये हम आईओ को बताएंगे। आईओ का काम सिर्फ सिग्नेचर करना होगा। वो जो है जहां कहीं भी होगा उसको जो है उसको रिक्विजिशन करके रियल टाइम बेसिस पे प्रोसेस करेगा कि उसके इन्फ्रेंसेस मिल जाए। इसमें जो डाटा है वो उस डाटा को हम पुलिस को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे डाटा जो है वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, स्पेशली जहां पुलिस और क्रिमिनल का पार्टनरशिप है, जो कि हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहां पर ये बड़ा रिस्की हो जाता है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यदि पुलिस के पास पहुंचेगी तो पुलिस कई बार इस डर से कि मैं ना फंस जाऊं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल से शेयर करता है या सेखी बगाड़ने के लिए पत्रकारों से शेयर करता है। तो दोनों ही जो है ना नेट रिजल्ट तो ये है कि आपका जो है नेट एंड बोल्स आर बीइंग एक्सपोज्ड। कहते हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नोबडी शुड प्ले विद द जो है ना टूल्स, और हालांकि उन्होंने जो है दैट ही टोल्ड इन टर्म्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से आप छेड़खानी मत करिए, इट इज स्टील फ्रॉम, डोंट प्ले विद इट। अब हम उसी बात को जो कह रहे हैं कि हम एविडेंस और टेक्निकल टूल्स और उनकी बात कर रहे हैं। आज एक पत्रकार पूछता है कि आपने सीडीआर लिया कि नहीं लिया, PSTN डाटा लिया कि नहीं लिया। Why we are discussing these things? हम उसको जर्नलिस्ट लेके बताना चले जाते हैं कि साहब यहाँ गया वहां गया, क्यों बताना? मेरे ख्याल से जो है ना हम जस्ट सेखी बगाड़ने के लिए बहुत अहित कर रहे हैं। अब ये सेखी बगाड़ने का समय खत्म हो गया है। आप सुपरविजन करके सच में कंट्रीब्यूट करो जो नहीं कर रहे हो। सेखी वेखी लेने के चक्कर में ठीक नहीं रहे। 10 बोतल पकड़ी
जो कि थानेदार ने जो है ना उससे कहा कॉन्ट्रैक्टर से कि मुझे ऑपरेशन करना है, 10 बोतल भिजवा दो, और उसको पकड़ के फिर एक सप रहा है कि आदरणीय जो है ना पुलिस अधीक्षक, माननीय एडिशनल एसपी, माननीय सीएसपी के नेतृत्व में जो है ना एक दबिश दी गई जिसमें 10 बोतल पकड़ी गई है। ये कोई नहीं कहता है कि 10 बोतल लाने के लिए कहा गया, उसने 10 बोतल पेश कर दी है, और जो जितने ज्यादा बदमाश होता है वो उतने ज्यादा ऐसे केसेस बना देता है कि उसके लिए बड़ा आसान होता है। आपने कहा कि आप चाकू और आर्म्स लेंस की बहुत बात करिए, तो उसने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों को लिया और धर दिया। आई एम सेइंग इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। यदि कोई आप जो है बेकसूर व्यक्ति को सिर्फ आंकड़े को दिखाने के लिए यदि आप उसे बंद करते हैं, तो उसे जो है ना उससे बाहर निकलने के लिए वकील की फीस देना होगी, ढेर सारे काम करना होगा। तो बेचारा यदि वो क्राइम नहीं भी कर रहा होगा तो he will commit crime, क्योंकि he has to cope up with the financial burden we are placing on him. Now इतनी चीजों को तो समझना पड़ेगा। Why we are doing the things just like mechanically? Let's do the things smartly. हमारा सिस्टम जो है क्रिमिनल्स को ग्रेड करेगा, किस क्रिमिनल के खिलाफ जो है ना पकड़ना ठीक नहीं रहेगा तो उसको स्पेशल ऑपरेशन के तहत पकड़ा जाना है, उनको स्पेशल ऑपरेशन पर पकड़ेगा। हमारा सिस्टम को मालूम है कि हर कुत्ता जो है ना, हर क्रिमिनल कुत्ता है, और हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो हमारे सिस्टम को अच्छे ढंग से मालूम है कि किसी भी कुत्ते को शेर की हैसियत से नहीं पकड़ना है। तो वो, और चूंकि उसे मालूम है कि तुम कहाँ क्या करते हो, तो वो अपनी मर्जी से आपको पकड़ लेगा। अब यदि एज्यूम करिए कि आप कभी कभी कुत्ते को शेर की हैसियत से इसलिए पकड़ना चाहते हैं जिससे पब्लिक में एक मैसेज जाए, तो फिर पुलिस जो है ना शेर की तैयारी से जाएगी। यदि जब वो शेर की तैयारी से जाएगी तो उसको जो है ना ऐसे ऐसे 8 हमारे जो है ना, हमने इतने प्रीशियस जो है ना अपने अधिकारियों को खो दिया है, ये अधिकारी नहीं खोएंगे। इट इज ए वेरी रॉन्ग मैसेज। और इसमें मैं तो माननीय अदालतों से भी कह रहा हूं कि अभी हम लोगों ने जो बहुत सारे वो किए हैं, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये एक पाप की कैटेगरी में है। यदि मुझे अभी भी याद है कि अरुण सूरी जी ने जो है ना एक आर्टिकल लिखा था, जब उन्होंने कहा था कि वी आर कमिटिंग ए सिन। यदि ऐसा सिन होगा तो पंजाब जो है ना कब अपने उससे हट जाएगा, ये आप नहीं समझ रहे हो। आज जिन सूरबीरों ने अपनी जान खतरे में रख के जो है ना उस समय जो ऑपरेशन किए हैं, उनको जो है सब लोग मिलके और उनको जेल में बंद कर रहे हैं, ये कदापि ठीक नहीं है। वो जो है ना सब लोग कहाँ चले गए थे जब जो है ना चारों तरफ जो है ना आतंकवादियों का आतंक था, तब तो जो है ना सभी जो है ना ब्यूरोक्रेट, सभी जुडिशरी और सभी जजेस जो है ना दड़बे में घुसे हुए थे। जैसे ही जो है ना कंट्रोल कर लिया तो सब शेर बन गए। आपकी वो शेर वाली जो है ना वो कब कहाँ गई थी वो। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम जो है बदमाशों को बड़ा बनने के पहले वी कैन कट देम, एंड हमारा सिस्टम जो है इतने महाबलियों को आइडेंटिफाई करेगा और वो जिस हैसियत का होगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो हर दिन जो है ना एक महाबली को जो है ना निपटाएगा। यहाँ निपटाने को आप इनकाउंटर मत मानिए, आई विल अरेस्ट देम, राइट। एंड क्योंकि हमारे पास बहुत एविडेंस होंगे तो हम उसको सजा भी दिला पाएंगे। तो आप उसको डोंट निपटाने को आप जो है ना इनकाउंटर मत मानिएगा, ठीक है ना। तो नहीं सर, बिल्कुल करेक्ट स्पिरिट में ही ले रहे हैं, थोड़ा सा बस भाषा का अंतर है। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे आगे ये पूछना था कि आपका जो आपकी बात का जवाब पूरा हो गया है या मैं उसे और खोलूं, क्योंकि इसमें जो है वो जो है नहीं सर, आगे चल के इसमें एक्सपर्ट ऐप बन रहा है। तो वो जो एक्सपर्ट जो है ना दे वुड बी इन पोजीशन टू गाइड इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली, और उनके जो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस हैं IoT डिवाइसेस के तहत दे विल बी आल्सो इंटीग्रेटेड विद द ऐप। तो वो अपने उन स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस का भी यूज कर पाएंगे और हम वो एविडेंसेस को कैप्चर कर पाएंगे। और वो एविडेंस जो है ना जो कैप्चर करेंगे उनके साथ 3 सर्टिफिकेट भी हर एविडेंस के साथ जो है ना लग जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो यदि उसका जो डाटा है या डॉक्यूमेंट है यदि वो डिजिटली मूव हुआ है तो उसकी डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी को पेश किया जाएगा, और यदि कोई चीज फिजिकली मूव हुई है तो फिजिकल चेन ऑफ कस्टडी को भी मूव किया जाएगा। तो जहां टेक्नोलॉजी कहीं मैनिपुलेशन की क्षमता रखती भी है,
उस नेगेटिव टेक्नोलॉजी को किसी भी मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं रहेगा। और हम कोर्ट को बहुत मदद करने वाले हैं, जितना हम कोर्ट को भी बहुत मदद करने वाले हैं, तो लिहाजा कन्विक्शन विल बी ए सर्टेनिटी। जी सर। सर आपकी श्रेयसी, मैं आपकी बात को किरण से समझा पाया। क्लियर हो गया कि इसमें कोर्ट को भी एक लोटस फंड अपार्टमेंट, मैंने लिया था, एड्रेस लिखा हुआ है। सर आपकी बात से मुझे ये क्लियर हो गया है कि इसमें कोर्ट को भी एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका डिस्क्रिशन का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, क्योंकि सब कुछ काफी ऑटोमेटेड तरीके से हुआ है और एक चेन के अंदर हुआ है। लेट मी पुट दिस वे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 100% जो है अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर पाएगा, और चूंकि सुपरवाइजरी ऑफिसर का भी कंट्रीब्यूशन एवेल्युएट हो रहा है और वो उसके परफॉर्मेंस इंडेक्स में जुड़ेगा, तो आगे चल के सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है ना बाकी लोगों को पटाने की बजाय अपने सुपरविजन पे ध्यान देंगे, नहीं तो उनकी एसीआर खराब हो जाएगी। तो हमारी क्वालिटी ऑफ जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जो डिस्क्रिशन नेगेटिवली होता है कि मैं तो कुछ करूंगा, सामने वाला कह रहा है कि साहब बगल में जो है ना सीसीटीवी लगा है, उसका सीसीटीवी का फुटेज देख लीजिए, वो फुटेज देखने के लिए तैयार नहीं है आप, तो ये जो इसको हम डिस्क्रिशन नहीं कहेंगे, इसको हम इनडिस्क्रिशन कहेंगे। तो सिस्टम उनके इनडिस्क्रिशन को रोकेगा और डिस्क्रिशन और एक्सपर्टाइज को आगे बढ़ाएगा। अब जो है ना ट्रेनिंग जो है ना, मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के फेवर में नहीं हूँ, तो वो ऐप उनको ट्रेनिंग भी देगा, और उस ऐप में आप ये भी कह सकते हैं कि साहब हम यहाँ कमजोर महसूस कर रहे हैं, मुझे यहाँ ट्रेनिंग चाहिए, तो हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं दे विल अरेंज स्पेशलाइज्ड कोर्सेज फॉर सच ट्रेनिंग नीड। तो अभी जो अभी क्या होता है कि स्पेरेबल जो है ना लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग की जो भी वो सीख के आते हैं वो जमीन में पोस्ट ही नहीं होते हैं, तो इसका यूज ही नहीं होता है। तो नाउ द ट्रेनिंग शुड बी नीड बेस्ड, और जो ट्रेनिंग होके आ रहा है उसका जो है इसमें पूरी ढंग से यूज हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। हम जो है पुलिस को 90% डीबर्डन कर देंगे, उसको 10% काम करना होगा, और उस 10% काम के साथ उसको समन्स वारंट तामीली वगैरह भी कुछ ज्यादा नहीं करना होगी, शायद उसको पेट्रोलिंग भी हम काफी कुछ उससे हटा लेंगे, तो उसके पास ज्यादा काम जो है क्राइम का ही रहेगा। और लॉ एंड ऑर्डर हम होने नहीं देंगे, बिकॉज वी नो कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों होता है और उसकी जड़ें कहाँ है। चूंकि हमारे पास ब्रह्मचक्षु होगा, तो लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर करना बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर ट्रेल को चरित्र को बना के चुनाव के समय उसको परोसेंगे जनता को कि ये आपके नेता का असली चरित्र ये है। तो लॉ एंड ऑर्डर करना इतना आसान नहीं होगा, और मेरा तो ये मानना है कि ये फालतू की जो कैनवासिंग है सब बंद हो जाना चाहिए। अब जो है ना सब जगह ऑप्टिकल फाइबर गिर रहे हैं, सब जगह टेलीविजन और वो सब लगा के नाउ सभी इलेक्शनरिंग जो है इट शुड बी डिजिटली शुड बी डन। तो किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। देखो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा, हमें किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी का तो हमारे चुनाव भी जो है वो काफी स्वच्छ हो जाएंगे। जी सर, जी सर। मैं आपके बात का क्राइम फ्री इंडिया का एक, जी सर, मैं आपकी बात का जवाब ठीक ढंग से दे पाया या मैंने उसको कहीं लपेट दिया? हेलो, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको मैंने नहीं संतुष्ट किया है या मैंने एक सवाल और अपने वाक्य जाल में आपको जो है ना घुमा दिया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मेरा एक सवाल और है। आपके क्राइम फ्री इंडिया का एक सेगमेंट है कि आप क्रिमिनल हॉटस्पॉट्स और क्रिमिनल क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके क्राइम प्रिवेंशन की ओर इस तरह से बढ़ेंगे आगे। तो सर ये देखिए कैसे होगा? आपने बहुत अच्छी बात मतलब मुझे ये एक पॉइंट, देखिए आगे वाला सिस्टम जो है ना बहुत सारी चीजों को कैप्चर कर रहा है, तो किस प्रिपरेशन से निकल रहा है उस समय हमें ये अनुमान हो जाएगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। नाउ चारों तरफ जो है IoTs और CCTV का नेटवर्क होगा, तो वो कहाँ जा रहा है और किस हॉटस्पॉट पे वो जो ना जाएगा, ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम वहाँ पे पुलिस को, यदि पुलिस कम है तो हम कम्युनिटी वॉलंटियर्स को वहाँ पहुँचा पाएंगे, और हमें विश्वास है कि शुरू में हम शायद हो सकता है 50% केसेस को रोक पाएं,
लेकिन एज वी विल प्रोग्रेस हम जो है लगभग 100% जो है ना अपराध को होने से रोक पाएंगे। ऐसा क्लेम आपको अभी तक किसी पुलिस ऑफिसर ने नहीं दिया होगा। बट यदि आपको जो है ना मेरी बात से पूरा खुलासा ना हुआ हो, सो वी कैन नो कि ये लोग निकले हैं और अब ये क्राइम करने की नीयत से निकले हैं। बैक एंड जो है ना, सिंस वी हैव डेवलप्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस, तो हमारा सिस्टम जो है ना हमारी सभी नोड्स से बात कर पाएगा। सो वो कहेगा कि क्रिमिनल यहाँ से निकला हुआ है, ही इज लाइकली टू बी कैप्चर्ड बाय यू। तो जितने भी जैसे 10-100 जो प्रोबेबिलिटी है, उन सभी प्रोबेबिलिटी के नोट्स को जो है ना वो कमांड देगा, लुक फॉर हिम। अब उनमें से जहां से भी वो निकलेगा, दैट कमांड विल गिव द इंफॉर्मेशन कि यस ही हैज मूव्ड फ्रॉम हियर। वहां से एआई विल कैलकुलेट व्हाट कुड बी हिज नेक्स्ट मूव, और उसको वो बीच बीच में कंफर्म होता करता जाएगा। तो जब आप चल रहे हो तब हमें मालूम है कि गैंग चल रहा है, इवन वी कैन डिसाइड यू टू इंटरसेप्ट। हम कोई ढीली पुली तो व्यवस्था की बात नहीं कर बड़े रहे हैं। क्रिमिनल्स के लिए नहीं, देखिए आपके डाटाबेस में क्रिमिनल्स हैं ऑलरेडी नाउ। उन क्रिमिनल्स का क्रिमिनल क्लस्टर्स है। क्रिमिनल क्लस्टर्स को जो है ना के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना पुलिस का काम है, तो हम वो पुलिस गैदर करेगी। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, वी विल एनालाइज एंड अच्छे से। तो वी ये विल बी कैप्चरिंग के ये। सर एक मिनट या सर, मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। तो ये प्रोविजन बेसिकली हिस्ट्री शीटर्स के लिए है, ये फ्रेश क्राइम और फ्रेश क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। देखिए क्राइम के ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं, और जब क्राइम के मैनिफेस्टेशन के पहले जैसे जो है एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी माँ जो है चिड़िया देखिए तो उसकी माँ ले जाती है, उसको चुगना सिखाती है। तो ऐसे ही जो है जब नया व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके जो शागिर्द जो सातिर लोग हैं वो उसको ले जाते हैं साथ में। तो आपका सिस्टम कैप्चर कर लेगा कि सातिर आदमी जा रहा है, इसके साथ ये व्यक्ति जो नया जा रहा है, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं है। सो एसोसिएट एनालिसिस से हम वो नए बडिंग लोगों को भी पहचान पाएंगे। तभी हम 5वें चरण में कह रहे हैं सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, नॉट ओनली द क्रिमिनल्स बट द पीपल विद द क्रिमिनल प्रोपेंसिटी। तो उनके जो एसोसिएट्स हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम उनको प्रोपेंसिटी में काउंट करेंगे, क्योंकि वो क्रिमिनल के साथ घूम रहे हैं, क्रिमिनल के साथ जो है ना रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जो क्राइम का पैसा है उसका लाभ ले रहे हैं, तो आगे चल के उन्हें क्राइम भी करना पड़ेगा। तो जो है सिस्टम विल बी इन पोजीशन टू कैप्चर दैम। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या इतनी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास रहेगी? बिल्कुल नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी। इसके लिए एक कानून बनाया गया है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 65 अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब जो डाटाबेस हैं वो जो है उस अथॉरिटी का हिस्सा रहेंगे, और उस अथॉरिटी में 2 बड़े कड़े कानून हैं। यदि इंसाइडर भी अल्टीरियर यूज करेगा किसी डाटा को बाय चांस, तो देयर विल बी पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर। इस एक्ट में ये जो है ना इस बिल में जो है हमने ये सजेस्ट किया है कि उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान होगा, और बेल प्रोविजन बहुत डिफिकल्ट होंगे। और चूंकि हमारा सिस्टम बैकएंड में बहुत सारी इंटेलिजेंस ऑलरेडी कलेक्ट कर रहा है, तो हमें लॉग में वो सब एविडेंस मिलेंगे कि हम उस इंसाइडर को 2 मिनट में विद प्रूफ विद जेल के अंदर 7 साल के लिए बुक कर दें। तो कोई भी इंसाइडर जो अभी क्या हो रहा है कि वो इंसाइडर मलाई खा रहा है, वो अभी इंसाइडर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर बन गया है, अभी वो इंसाइडर जो है वो टेक्निकल ऑफिसर बन गया है, वो ड्यूरिंग द सर्विस भी फायदा ले रहा है और सर्विस के बाद भी फायदा ले रहा है। वो अभी जो है जब ये लोगों को ये मालूम होगा कि सब फायदा तो छोड़ो 7 साल जेल जाना होगा, तो इन सबके चरित्र बदल जाएंगे। और इंडियन में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम यहाँ पे इतनी नालायकी करते हैं, और जब हम विदेश जाते हैं तो हमारा चरित्र बड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सिस्टम अच्छा है। तो यदि हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो हमारा चरित्र भी बदल जाएगा। आपको बात ठीक लग रही है कि नहीं? जी सर। मैंने आपका जो नहीं आपसे फिर कह रहा हूँ, कन्विक्शन गारंटी ऑफ नहीं बोलिए प्लीज। सर, गारंटी ऑफ कन्विक्शन ऐसा माना गया है कि गारंटी ऑफ कन्विक्शन इज अ बिग डिटरेंट टुवर्ड्स
क्राइम प्रिवेंशन। बिल्कुल ऐसे ठीक हम बात। सोचते हैं कि एक रेपिस्ट को फांसी दे देंगे, एक टेररिस्ट को फांसी दे देंगे, तो ये तो हमारे देश में प्रैक्टिकली साबित हो चुका है कि एक हादसे में रेपिस्ट को फांसी देके रेप नहीं रुकते इंडिया में। लेकिन गारंटी ऑफ कन्विक्शन अगर उन्हें पता होगा कि वो बच के नहीं निकल पाएंगे, उससे जितना क्राइम प्रिवेंशन होगा, उससे ज्यादा क्राइम प्रिवेंशन किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि क्राइम करने की सजा मिलेगी, ये खुद में सबसे बड़ा डिटरेंट है। आगे चल के महिलाओं से छेड़खानी करना विल नॉट बी ऑप्शन। रिमोट करना, रेप करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज आवर सिस्टम वुड बी कैप्चरिंग कि ऐसे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें चूंकि अब कैप्चर नहीं हो रही हैं, तो हम एक जो है असहायों की फौज बन गए हैं। अब जो है हम असहायों की फौज नहीं होंगे, हम समर्थ लोगों की फौज होंगे, तो हम काफी हद तक अपराध को रोक पाएंगे। और श्रेयसी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे बाक जाल में मत फंसिए। आप एडवोकेट हैं, आप बिल्कुल अपने पूरी शक्ति के साथ अपनी बात रखिए। नहीं सर, एक्चुअली हमारा पर्पस यहाँ पे क्राइम फ्री मिशन के मोटिव और उसकी एक्सपेंस को समझना है। हमारा मिशन है कि हम समझें कि ये हमारे जो कॉज है, हमारा जुडिशियल डिले है और हमें कन्विक्शन पाने में जो दिक्कत होती है, उसके हमें कैसे मदद करेगा। आगे तो चल सर, हम बस ये जानना चाहते आगे चल के हमारा सिस्टम जो है समन्स और वारंट की तामीली और इशुएंस में मदद करेगा, और उसको जो है हमारे सिस्टम के तहत जो है ना उसको कंडक्ट करके हमारे वॉलंटियर्स के पास भेज दिया जाएगा। आगे के भविष्य के समन्स वारंट की तामीली पुलिस नहीं करेगी। पुलिस विल बी एक्सोनरेटेड फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अभी जारी किया और वहीं के बगल में बैठा व्यक्ति उसको उसी समय तामील कर देगा। तीसरी बात यह है कि आज आदमी इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि उसे कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ते हैं। फिर कोर्ट में जो है ना आप लोग वकील लोग एडजॉर्नमेंट ले लेते हो, उसका समय खराब होता है। आपको भी मैं बताऊं एक बहुत छोटी सी बात। एक बहुत कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन थे, उनका जो है पत्नी जा रही थी और उनकी चोरी हो गई रेलवे में। उस समय मैं डीजी रेलवे हुआ करता था। खैर हमने जो है उनका वो उसमें आईफोन वगैरह था वो सब बरामद कर लिया। अब उनको कोर्ट में पेशी होना थी, तो उनको एक बड़ा घटिया सा कि आपको हुक्म दिया जाता है कि कोर्ट में पेश हो, तो उनको बड़ा ऑफेंडेड लगा। उन्होंने मुझे, चूंकि वो मुझे जानते तो उन्होंने मुझे फोन लगाया कि साहब देखिए कैसे समन्स आ रहे हैं, आई एम बीइंग ट्रीटेड, विटनेस की बजाय मुझे जो है ना अपराधी समझा जा रहा है। अच्छा, इंसिडेंटली मुझे उसी दिन दिल्ली जाना था, तो वो रेलवे मजिस्ट्रेट साहब किसी काम से आए हुए थे, उनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखिए एक ऐसा केस मेरे सामने आया। बोला सर वो तो प्रिंटेड है। तो मैंने कहा भाई कब तक प्रिंटेड चलाएगा, हम क्या अच्छी भाषा नहीं लिख सकते? हम कब तक ये दुहाई देते रहेंगे छोटी मोटी चीजों की? भाई वी कैन नॉट बी मोर रिस्पेक्टफुल। यदि कोई सिटीजन गवाही देने आ रहा है, ही इज डूइंग ए ग्रेट ड्यूटी, जिसके कारण आप भविष्य में अपराधियों को सजा दिला पाते हैं। लेस होल सोसाइटी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हिम, एंड आगे चल के उसे कोर्ट नहीं आना पड़ेगा। हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तहत वी विल इंश्योर कि उसको कोई धमकाए नहीं। ये सब चीजों को देखते हुए भी, जो अभी आप फिल्मों में देखते रहते हैं कि रास्ते में रोक लिया, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और हमारा सिस्टम ये भी असेस करेगा गवाही देने के पहले कि वेदर हमारा जो गवाह है इज ही इन ए पीसफुल कंडीशन, उसकी बॉडी में पर्सपायरेशन तो नहीं है, कंपन तो नहीं है। उसको जो है ना उसके पहले तैयार किया जाएगा, उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजिस्ट ये सर्टिफिकेट देगा कि दिस विटनेस इज रेडी and he is absolutely free from any coercion। then जो है ना उसको गवाही के जो है ना उसमें जाएगा और उसको बिना जाए हुए दूर से ही गवाही संभव हो पाएगी। जो अभी बहुत सारे वकील जो है कोर्ट में सिचुएशन को बहुत खराब करते हैं, समटाइम दे यूज देयर न्यूसेंस पावर। वो मुझ जैसे डीजी को अभी एक गवाह जो मैं डीआईजी मैंने जांच किया था, जिसमें मेरे इंक्वायरी के ऊपर एसपी के ऊपर 4 ऑफिस रजिस्टर हुए थे, तो उसकी गवाही के लिए मैं गया हुआ था और मेरी गवाही 5 दिन चली थी। तो जो वकील साहब थे वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक डीजी जो खुद कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है उसको भी थ्रेट करने की कोशिश की। तो फिर मैंने उनको फ्लैट भाषा में समझा दिया कि ये सब टैक्सेस से आप बचिए। इन फ्यूचर द टेक्नोलॉजी विल कैप्चर दीज थिंग्स एंड इट विल गो टू द कोर्ट कि साहब ये वकील साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, प्लीज टेक कॉग्निजेंस।
इट विल गो एंड इट विल गो टू द बार एसोसिएशन। देखिए साहब, दिस इज द प्रूफ, आपके वकील साहब ने जो है ना ये एथिक्स का जो है ना वायलेशन किया है, एंड चूंकि यू आर कस्टोडियन ऑफ द एथिक्स एज ए बार एसोसिएशन, प्लीज जो है ना इम्प्लीमेंट इट। एंड आगे चल के जो है, आई डोंट नो कि अभी आपका जो है मेंबरशिप कितनी कैंसिल होती है कि नहीं होती है, होती नहीं होगी तो भी हम नियम में प्रावधान कर देंगे कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल होगी। होती है सर, होती है। तो हम सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोर्ट का जज हो, कोई भी हो। लेट्स बिहेव रिस्पॉन्सिबली, ट्रांसपेरेंटली, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम। अभी पब्लिक इतनी जल भुन गई है कि अच्छी बात को वो अविश्वास से देखती है। उसकी स्थिति इस समय ऐसी है कि कहते हैं ना कि दूध का जला जो है छाछ को फूक फूक के पीता है, तो इस समय पब्लिक जो है छाछ को फूक फूक के पी रही है। जब कोई अच्छी बात करता है तो उसे लगता है कि साला ये भी कोई ड्रामा है और ये भी कोई पॉलिटिक्स है। आपकी अच्छी चीज को पब्लिक बड़ी आसानी से ग्राह्य नहीं करती है। तो ये समय आ गया है, लेट देयर बी टोटल ट्रांसपेरेंसी, एंड माय फ्रेंड, इट इज डूएबल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैत्री शरण गुप्त अपनी शक्ति से ये करके दिखाएंगे, और ये मेरा पद कर्तव्य भी है। There's some question, somebody may read it. Yes sir. So the question, moderator. Yes, I am reading out the question, sir. The question is asked by Mr. Deepak Shrivas. क्वेश्चन है सर, बट सर आपको क्रिमिनल का डेटा तो लोकल पुलिस स्टेशन प्रोवाइड करेगी, तो कोई भी लोकल पुलिस लेस डेटा है प्रोवाइड करेगी बिकॉज वो अपने स्टेशन रॉन्ग फॉर्मेट में शो नहीं करेगा। इट्स माय विजन। बेटे आपका सोचना सही भी है और गलत भी है, क्योंकि हम जो है ना थाने से डाटा नहीं लेंगे, हम सीसीटीवी से डायरेक्ट डाटा लेंगे, और एक सेट ऑफ डाटा पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जो सीसीटीवी का डाटा अभी बहुत उपयोगी नहीं था, हमने ऐसे नट एंड बोल्ट डिजाइन कर लिए हैं कि वो हमारे लिए लगभग ब्रह्मचक्षु बन चुका है। मैं वो सब देख सकता हूं जो और कोई नहीं देख सकता। लेकिन सर उस डाटा की एडमिन जरा टेक द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द मतलब वो पीपल, डाटा अदरवाइज ऑथेंटिक है। वो हमको डंडा लेके मारने आएंगे कि साहब हमको आपने हमको भी इनवाइट किया था, आप हमको मौका ही नहीं दे रहे। जी सर। तो मेरे ख्याल से पीयूष जी जो है, धन्यवाद दीजिए जो है श्रेयसी को। शी हैज आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन, एंड श्रेयसी आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर आस्किंग वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि जब कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तभी अच्छा जवाब दिया जा सकता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू विषय पे एनलाइटन करने के लिए। जी थैंक यू। श्रेयसी जी थैंक यू आपका इस हमारे क्राइम फ्री भारत इनिशिएटिव में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपने वैल्यूएबल इनपुट हमें देते रहेंगे। तो हम आपको बीच बीच में हमेशा डिस्टर्ब करते रहेंगे आपको इस शो में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सरसी, एंड please convey my thanks to Mr. KB Singh. We work together. I know your mom also, so just convey that I was remembering her too. Thank you. Thank you to KB sir also for coming to this show. Admin, please join. Please next जो हमारे गेस्ट है उनको ज्वाइन करवाइए। Sir, a very warm welcome to Mr. Ajay Chopra, sir. So I just want to read in brief the intro of Mr. Ajay Chopra. Sir, Mr. Ajay Chopra is the secretary and administrator of a CISC affiliated higher secondary school in Kolkata by the name of St. Francis Xavier School, which has about 1,250 children on its rolls. The school has been consistently ranked among the top 20 schools of Kolkata by the Times of India group. He started his career in finance as a research analyst, and after completing his graduation from Hansraj College, Delhi University,
and thereafter his post-graduation in management from Goa Institute of Management. Due to his keen interest in law from Utkal University, and thereafter post-graduation in law from Amity University. Sir, we are welcoming you to this show. Please kindly Thank you. ask some important and questions to our Mathili Sharan Gupta, sir. Please. Sir, very good evening to you and to Ajay all sir. the panelists. And I have been following the discussions very very keenly. और इस कोविड के टाइम में जब सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं, सर आप बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और बहुत ही इनकरेजिंग फ्यूचर लग रहा है देश का आपको सुन के कि आपका इतना बढ़िया विजन है। शायद गवर्नमेंट्स भी इतना नहीं सोच पा रही हैं जितना आपने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है और ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आप आ रहे हैं। सर स्मार्ट पुलिस की बात करी थी प्रधानमंत्री ने 2014 में, और उसका जो टी था उन्होंने एक्रोनिम बनाते हुए हर बार उन्होंने टी का एक एक्रोनिम बनाया था जो स्मार्ट का टी है कि टेक्नो सेवी एंड ट्रेन्ड पुलिस। और आई थिंक आप उसी रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके हैं और बहुत ही ज्यादा आपने इस पे रिसर्च कर लिया है। आपका विजन इतना क्लियर है, आपकी बातों में सब समझ आता है। सर एक डाउट है मेरा, सर पुट्टुस्वामी जजमेंट था उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा गया है और अभी भी हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का कोई भी एक ढांचा नहीं है, कोई लॉ नहीं है। और सर जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन आपने जो सोच रखा है वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, डेटा फ्लो पे डिपेंड करेगी, चाहे वो रेलवे टिकट्स हो, एयरलाइन टिकट्स हो या टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो या सीसीटीवी का जो जाल बिछ गया है पूरे देश में उसका एक्सेस आपको लेना हो। तो सर इस डेटा प्रोटेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हर्डल जरूर आएगा, जो राइट टू प्राइवेसी एक्टिविस्ट हैं वो जरूर चैलेंज करेंगे, इसको कैसे डील करेंगे सर? आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन है कि जिसको लोग उठा के किसी भी अच्छे काम को रोकने का जो धंधा है जो कि लोगों को करना होता है वो इस राइट टू प्राइवेसी का दोहाई देके चीज़ों को रोक सकते हैं। तो यही कारण है कि इस सिस्टम ने राइट टू प्राइवेसी पब्लिक को देने का ठेका ले लिया है। व्हाट वी आर सेइंग कि अभी जो चीज पुलिस के पास है, कई बार आप देखते हैं कि इवन हमारी एफआईआर भी जो है वो आरोपी के पास पहुंच जाती है, चाहे उसके लिए पुलिस वाला रिस्पॉन्सिबल हो या कोर्ट का लोअर फंक्शनरी रिस्पॉन्सिबल हो। हमारी जो है ना विवेचना के दौरान वो सब चीजें भी जो है पहुंच जाती हैं जो कि कई बार जो है हमारी विवेचना में बाधा बनती है। और हमारे लोग इतने अविवेकशील हैं कि जब हमारा मुंबई में अटैक हुआ तो उसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहा और अपराधी अंदर से सब चीज देख के दे कैन जो है ना क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो हम लोग जो है अपने छोटे से गेन के लिए, छोटी सी टीआरपी के लिए, छोटे से आर्टिकल के लिए हमारी कलम बिकी हुई है, हमारी सब चीज बिकी हुई है, तो हम इतने अविवेकशील हैं। तो ये सिस्टम जो है ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम कह रहा है कि भाई साहब, एक तो आपने पुलिस ज्वाइन की थी, वो इसलिए ज्वाइन की थी कि आप डंडा चलाएं, तो हम आपको ऑलरेडी बहुत कष्ट दे चुके हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन भी करो, हम आपसे कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी आप इन्वेस्टिगेशन करो, हम आपसे जो है ना ढेर सारे जो है ना बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। आजकल जो है ना तेलगी से लेके और हर्ष मेहता से लेके महान लोग हैं जो कि ढेर सारे जो है ना करोड़ों के घपले कर रहे हैं। अब बेचारा पुलिस वाला जो है, यदि उसको इतना सब चीज होती तो वो पुलिस थोड़ी ज्वाइन करता, वो कहीं का प्रोफेसर बनता। अब उस व्यक्ति को बेचारे को कितना आप प्रताड़ित करेंगे। तो ना तो हमारा पुलिस को टेक्नो सेवी बनाने का विचार है, ना ही हम बहुत पुलिस को ट्रेन करना चाहते हैं। यदि पुलिस वाला चाहेगा कि साहब मुझे ट्रेनिंग चाहिए तो ही हैज टू इंडिकेट कि साहब मैं इसमें वीक महसूस कर रहा हूँ, आई नीड ट्रेनिंग। जब तक वो नहीं कहेगा तब तक हम उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे। इसलिए जो हमने ऐप भी उनके लिए बना रहे हैं, वो ऐप जो है ना इच्छाधारी ऐप होगा। वो खुद समझेगा कि उसे क्या रूप लेना है और वो अपने आप को डायनामिकली अपडेट करेगा एंड इट विल फोर्स द पुलिस ऑफिसर टू डू ए क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन। तो जो ऐप है वो जो है पुलिस को गाइड करेगा,
पुलिस के हिसाब से नहीं चलेगा। और जहां पे जो है आप इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में आपका ठीक नहीं होगा, बैकएंड इंटेलिजेंस उस क्वालिटी को बार बार असेस कर रही है, वो उसको मदद करेगा कि नहीं नहीं, आपका एविडेंस ठीक नहीं आ रहा है, गो क्लोजर, इंक्रीज लाइटिंग, डू दिस डू दैट। और आगे चल के तो वो रोबोट से और ड्रोन से सीधे कम्युनिकेट करके वो बहुत सारी चीजें खुद कैप्चर करा लेगा। अब उस पुलिस वाले को बेचारे को समझना ही नहीं है, उसको जो है नाम पता लिख के घर पे स्टेटमेंट लिखना है, तो उससे तो काम चलना नहीं है। सो इट विल मेक द थिंग्स वेरी वेरी गुड फॉर द पुलिस ऑफिसर। हमारी कल की पुलिस जो है वो बहुत डी स्ट्रेस रहने वाली है, उसके पास अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए समय रहेगा। वो जो है 10% काम करके 100% रिजल्ट लाएगी, 100% कन्विक्शन भी दिला पाएगी। एट द सेम टाइम हम उसको किसी भी टेक्निकल चीजों से बर्डन नहीं करेंगे। हमारा सिस्टम जो है कैप्चर करेगा, जो एविडेंस होगा उसको एविडेंस में आइडेंटिफाई करेगा, एविडेंस की क्या वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको 3 सर्टिफिकेट से जो ना उसको रियल टाइम बेसिस पे जो है ना डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के साथ स्टैम्प कर देगा और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट कर देगा। सिस्टम रियल टाइम बेसिस पे 3 सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। और जब हम चेन ऑफ कस्टडी की बात करते हैं तो दोनों चेन ऑफ कस्टडी रहेंगी, जहां एविडेंस का डिजिटल मूवमेंट हो रहा है और जहां एविडेंस का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। दोनों की चेन ऑफ कस्टडी रियल टाइम बेसिस में क्रिएट होगी और उसके लिए वकील साहब को मांगने की जरूरत नहीं है। दैट दोस 3 सर्टिफिकेट विल बी टैग्ड विद द एविडेंस इटसेल्फ। बैकएंड इंटेलिजेंस जो है चाहे तो विवेचक मौके से पूछे या अपने हिसाब से भी वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन लीड बना के जो है प्रभारी को देगी। यदि उस समय रियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा तो वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऐप में ही वो सब मॉडिफिकेशन करके उसको फैसिलिटेट करेगी कि इसको कैप्चर करो। पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही होगी उसका परफॉर्मेंस भी रियल टाइम बेसिस पे इवैल्यूएट होगा। तो इतना तो किसी को नहीं मालूम है कि आप कब पहुंचे, कैसे आपने सीन ऑफ कॉर्डन किया है, आपने फोटोग्राफी टीडर से की है कि नहीं की है, आपने जो है प्रोसेसेस में जो है वो प्रिकॉशंस लिए कि नहीं लिए है, पैकेजिंग आपने कैसे की है। और पुलिस जो है आगे चल के इसको थाने भी नहीं ले जाएगी, सभी एविडेंस कोरियर सिस्टम से रियल टाइम बेसिस पे सीधे टेस्ट वहां पहुंचेंगे। और जो जितना भी डाटा जो है ना आ रहा है इसमें से कुछ भी डाटा पुलिस के पास नहीं जाएगा। सो वी गारंटी राइट टू द प्राइवेसी। और जो हमने इसके लिए एक एक्ट बनाया है जो कि लगभग बन के तैयार है, हम उसकी थोड़ी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं उस एक्ट को, जिसको हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 65C। हम जो आपको जो इतना लंबी बात कह रहे हैं यही वर्बेटम उस सेक्शन में लिखा है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं यही कर रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ना तो मैं थानेदार का पावर ले रहा हूँ, ना मैं स्टेट पुलिस का पावर ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो ये जो डाटा है इट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी में के नियम में भी ये बात हम लिख रहे हैं कि यदि कोई इंसाइडर, अथॉरिटी का इंसाइडर भी यदि उस डाटा को अल्टीरियर यूज करेगा तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान होगा, मिनिमम 7 ईयर पनिशमेंट। और बेल प्रोविजन डिफिकल्ट होंगे। और चूंकि बैकएंड जो है, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमने बनाया है, हमने साइबर सिक्योरिटी और साइबर इन्वेस्टिगेशन इन दो के बहुत पावरफुल मॉड्यूल क्रिएट किए हुए हैं। तो वो रियल टाइम बेसिस पे उन सब एविडेंस को कैप्चर कर रहा होगा। उसे कोई जब रिपोर्ट करेगा तब उसे डाटा से लॉग नहीं देखना है, उसको ऑलरेडी मालूम होगा कि ये जो है डन, एंड वो एफआईआर को प्रेसिपिटेट करेगा और एविडेंस के साथ में। तो जो महोदय इवन जो अथॉरिटी के हिस्सा हैं और जो वायलेशन कर रहे हैं वो सर्टेनिटी के साथ जेल में जाएंगे। तो केवल हम राइट टू प्राइवेसी बातों से नहीं कह रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी टू द एक्सटेंट ऑफ इवन प्रोसिक्यूटिंग द इनसाइडर विद इन द नेशनल अथॉरिटी ऑल्सो। चोपड़ा साहब, मैंने आपको
संतोषजनक जवाब दिया या आपको लग रहा है कि हमने तो कुछ फॉलो अप वाक्य जाल में क्वेश्चन है। कहीं CSDS का सर्वे था 2018 का, जिसपे द ट्रस्ट इन द पुलिस was captured at 25% और ट्रस्ट इन आर्मी was captured at 54%। तो सर इतना डेटा जो पुलिस के पास रहेगा, देखिए चोपड़ा साहब, मैं आपका जवाब जो है ना इसमें बड़ा अच्छा देता हूं। कॉन्फिडेंट रह सकता है। एक दूसरी रिसर्च है, वो रिसर्च कहती है कि जो लोग पुलिस के कांटेक्ट में आए हैं, पुलिस ने जिनको मालट्रीट किया है, हो सकता है कि मैन हैंडल किया हो सकता है उनकी पिटाई भी लगाई हो, उन लोगों की धारणा पुलिस के बारे में ज्यादा अच्छी है बशर्ते उन लोगों के बारे में, उन लोगों की जिन्होंने कभी पुलिस से इंटरफेस ही नहीं हुआ है। तो पुलिस की जो इमेज है वो सिनेमा से, हियर से कहानियों से, पत्रकारों की जो उल्टी सीधी कहानियां हैं उनसे बन रही है। दूसरी बात यह है कि हमारा अपना चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है, तो जब उसमें परिवर्तन आएगा, हम कोई परिवर्तन लाएंगे तो हम जो अभी एक हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि दूध को का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो जनता तो इस समय निराश बैठी है। इवन जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी निराश बैठे हैं, उनको लगता है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। इस देश के जो ना पॉलिटिकल सिस्टम इज अ रॉटन, यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज अ रॉटन, नथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री, और दे एस्पायर टू रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री। तो जब लोगों की आस्था इतनी बिगड़ चुकी है, वो पूरी तरह से सिस्टम से निराश हो गए हैं, और सिस्टम सिर्फ कुछ लोगों को ही सर्व कर रहा है, दूसरे लोगों को जो है उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। और एफआईआर ना लिखो ये भी मेहरबानी है, अपोनेंट का दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ जो है असत्य या अर्धसत्य रिपोर्ट जो है ना भी लिख ली जा रही है। मैं इसमें एक केस सुनाता हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव है। उसमें एक व्यक्ति को, वो डॉक्टर साहब थे, बिहार का केस है, मैं उसका आधा किस्सा सुनाऊंगा क्योंकि दूसरा आधा किस्सा पॉलिटिकल है, तो मैं उस पॉलिटिकल वाले पार्ट को कट कर देता हूँ। तो वो डॉक्टर साहब जा रहे थे, तो एक बदमाशों के गैंग ने उनकी गाड़ी को रोका, गन पॉइंट पे उनकी गाड़ी छुड़ाई ली गई है और उनसे सेल डीड में हस्ताक्षर करा लिए। अब डॉक्टर साहब बेचारे शरीफ क्या करते, अब वो वहां से उतरे तो पैदल चल के जैसे तैसे वो थाने तक पहुंचे। जब वो थाने में पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। जो व्यक्ति गन लेके उन्होंने सेल डीड पे साइन कराए थे, वो व्यक्ति थाना प्रभारी के साथ चाय पी रहा था। तो अब पब्लिक तो निराश होगी ही ना। ये हमें बहुत प्रयास करने के बाद आस्था के बीज बोना पड़ेंगे, वो विश्वास पैदा करना होगा, और वो विश्वास आसानी से पैदा नहीं होगा क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इसमें ड्रामा दिखाई देगा, कहीं ना कहीं लेक ऑफ सिंसियरिटी दिखाई देगी। तो विश्वास कैसे पैदा होगा? विश्वास तो कोई पैदा नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर रही है, वो भी अपने बोर्ड पॉलिटिक्स में कास्ट वास्ट जितना भी बदमाशी हो सकती है वो सब कर रही है, ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम नहीं कर रही है। तो विश्वास कहाँ से पैदा होगा? विश्वास पैदा करने के लिए हमें ऐसे पावरफुल सिस्टम बनाना पड़ेंगे और हमें सत्य कहने की हिम्मत जुटाना होगी। हमें सो कॉल्ड टैक्टफुल ऑफिसर्स हैं, इनको आईना दिखाना होगा, क्योंकि ये लिफाफा लेने वाले और जो टैक्टिकल का कहने वाले लोग हैं और जो एसर कहने वाले लोग हैं, जो सत्य कहने की क्षमता नहीं रख रहे हैं या जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पहुंच गए हैं, जब तक समाज उनको आईना नहीं दिखाएगी और जब तक जो है मैं श्रेयसी जी से कहना भूल गया कि जब तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट इसको आपका हत्या जो है फंडामेंटल राइट ना मान ले 21 में, यदि आप ये देखिए, जब यदि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि राइट टू लाइफ मीन्स जो है नॉट ए एग्जिस्टेंस लाइक एनिमल, पशुतुल्य जीवन जो है ना आपका राइट टू लाइफ नहीं हो सकता है, मानव जैसा जीवन आपका राइट टू लाइफ होना चाहिए। और इस बात को उन्होंने मानते हुए आपको 4 अधिकार दे दिए, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ। तो भाई साहब, लाइफ का सेफ्टी और सिक्योरिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, व्हाई इट शुड नॉट बी योर फंडामेंटल राइट, इट इज ए मोर नेचुरली रिलेटेड विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। चोपड़ा साहब, ये बात को आप, इस दलील को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक है। और सर आपके मिशन का एक स्तंभ है प्रिवेंशन, तो सर आप कैसे चाहेंगे कि एजुकेशन
सेक्टर, स्कूल सेक्टर आपके मिशन से जुड़े और बच्चों को भी फ्रॉम अ यंग एज उनको एक ओरिएंटेशन दिया जाए कि टू हैव अ थॉट अगेंस्ट कमिटिंग एनी क्राइम, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि वो उनके पेरेंट्स और सभी लोग जो है क्राइम फ्री भारत को चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और उनको विश्वास बनेगा। नंबर 1, हमने इसमें एक फॉर्मूला भी दिया है कि साहब एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों से बात करे और ये श्रृंखला 130 लोगों तक पहुंचे। जब ये मिशन जो है 130 करोड़ लोगों को 4 रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है तो उन 130 करोड़ लोगों को जुड़ना ही चाहिए। अब आप एक अनुमान करिए कि हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा जब आप पूछेंगे कि हम उनके लिए कैसे ये सब करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम आम पब्लिक के लिए 4 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना दे रहे हैं। तो जिनको रेवेन्यू मिलने वाला है और वो भी लाखों में पैसा मिलने वाला है तो उन्हें इसका हिस्सा होना ही चाहिए। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस। और जब इतने सारे लोग 130 करोड़ लोग यदि इस अभियान से जुड़ जाएंगे तो राजनेता भी इस बात को समझेंगे कि ये जनता की मांग है, नहीं तो ये पब्लिक के विचारों की आंधी जो है इसमें हर कोई पतंगे जैसा उड़ जाएगा। जब यदि राजनेताओं को ये बात समझ में आ जाएगी तो वो निश्चित तौर पे ऐसी चीजों से लाने में डरेंगे नहीं, बल्कि ओवरनाइट मेहनत करके रातों रात जो है ना नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम को लाएंगे और वो आपको वो सब चीजें दे देंगे। आपको उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। उसमें अन्ना हजारे जी जैसा कोई भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप सुन रहे हैं और 130 करोड़ लोग जो है जुड़ के 5 बजे मोदी जी की जो थाली बजाना है वही बैठ के ताली बजाएंगे। और यदि पूरे देश में 130 करोड़ लोग थाली बजा रहे होंगे तो उसकी आवाज की गूंज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसके लिए ना तो उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत है, ना ही उन्हें चंदा देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, लोगों को हम जोड़ रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ छत पे पहुंच के थाली बजाना है। जब हम थाली बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम उनसे आह्वान करेंगे कि समय आ गया है, बाहर निकलो, छत से ताली बजाओ। 130 करोड़ लोगों की जो थाली की आवाज है उससे देश तो छोड़ो पूरा ग्लोब हिल जाएगा। राइट सर। और सर ये जो एक जो बजट की जो प्रॉब्लम, चोपड़ा जी क्या आपको मेरी बात जो है संतोषजनक लगी, कन्विंसिंग लगी कि नहीं लगी? नहीं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इस समय आप जो है आप मिस्टर चोपड़ा की हैसियत से नहीं पूछ रहे हैं, आप 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप से पूछ रहे हैं। तो उस फर्ज को बताते हुए यदि आपको कहीं भी लग रहा है कि नहीं साहब ये तो इसमें चीज ठीक नहीं है, तो आप उसको जरूर पूछिए, क्योंकि आप जो है ना इस समय जनता की आवाज है। सर जीएसटी नेटवर्क जो है सर वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस को दिया गया था, लेकिन उसका बड़ा विरोध हुआ क्योंकि डेटा का एक प्रश्न उठता था। तो अभी गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट, हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि आपकी जो है ना संस्था रहेगी जिसका नाम नेशनल अथॉरिटी रहेगी। नेशनल अथॉरिटी विल बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्राइवेट कहाँ आ गया इसमें? अच्छा, डेटा गवर्नमेंट के पास। मैं तो सिर्फ मददगार हूँ, मैं तो सिर्फ सूत्रधार हूँ, मैं तो बना के सौंप रहा हूँ ना। कानून भी बना लिया है, वो भी सौंप रहा हूँ कि भैया इसको इनेक्ट कर दो, क्या दिक्कत है? एवरीबडी हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। अब जो है ना ये गुली और मूर्ख बनाने का समय खत्म हो गया है। लेट पब्लिक जो है ना शुड मेक एवरीबडी फील कि अब जो है छत पे चढ़ के थालियां बजेंगी और 130 करोड़ लोग जो थाली बजाएंगे तो बहरों को भी सुनाई देंगे। राइट सर। आप 130 करोड़ लोगों का, लेकिन उसके लिए 130 करोड़ लोगों को जुड़ना होगा, उन्हें अपनी छत पे जाना होगा। जहां जिनके पास छत नहीं होगी वो अपने चबूतरे पे जाना होगा और वहां पे उनको डुगडुगी बजाना होगी। और वो बहरों के लिए है कि अब समय आ गया है, जाग जाओ, हिंदुस्तान जाग रहा है, हमें ये बतौर हक मिलना चाहिए। हमारे जो है पीयूष दुबे जी ने बताया है कि हम अकेला जो है क्राइम फ्री भारत की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन। वी आर टॉकिंग ऑफ जॉब एंड सर्विसेज रिच इंडिया। वी आर टॉकिंग ग्रीन हर्बल न्यूट्रिशन रिच मेडिसिन फ्री इंडिया। आई फील कि जो है मेडिकल वर्ल्ड ने आज जो हम इतने सारे कैंसर से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंस्पायरेसी ने हमें वहां धकेल दिया है। आप ये बताइए, जो डॉक्टर है जो बड़े प्रोटोकॉल की दुहाई देते हैं,
वो आपको छोटी सी भी खांसी होती है तो एंटीबायोटिक की डोज दे देते हैं। ये प्रोटोकॉल उनको किसने दिया है? विदेशों में तो जो है ना एंटीबायोटिक इतनी आसानी से देते नहीं है, तो उनका ये महान जो है एलोपैथी तो उन्होंने विदेश से अडॉप्ट की। ये प्रोटोकॉल कहाँ से पैदा हो गए? ये प्रोटोकॉल जो है ना उनको फार्मेसी कंपनियों ने दिए हैं। ये समय आ गया है कि आप पूछें ये बात, और ये समय आ गया है कि हम सरकार से ये भी पूछें कि जो हमारे दादी के नुस्खे हैं, जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं, यदि वो कोविड में इफेक्टिव और कोरोना में इफेक्टिव हो सकती हैं, और तो हम उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ वैक्सीन, दीज मेडिसिन आर एज गुड एज जो है ना, जो वैक्सीन होगी वो एक्सटर्नल केमिकल कंपाउंड होगा, इट विल आल्सो बी हैविंग सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो हम यदि ये, या तो हम ये कहें कि जो ये क्लेम किए जा रहे हैं वो ढकेसले हैं, जब हमारे पास 7.5 लाख लोग जो है ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं या रहे हैं, या उनमें से कुछ लोग, कभी 2-2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी हैं, तो उनको जो है हम ग्रुप में बांट के 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये प्रमाणित करके दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि इट इज डूएबल, इससे ये चीज हो रही है। रोज जो है ना सैकड़ों मैसेज जा रहे हैं, हर मैसेज से को कंपाइल करें, ग्रुप बनाएं, अभी जो है ना उसको स्टैंडर्डाइज करें 3 या 4 फॉर्मेशंस में, उनको उतने ग्रुप बना के उसको टेस्ट करें, और 7 या 10 दिन में हम दुनिया को कहें। और यदि ये कोविड को ट्रीट करने की स्थिति में है, एक कभी हम एक वो देख रहे थे, आई डोंट नो क्या है, फलेसी, उसमें उन्होंने कहा कि साहब आप नींबू के सिर्फ 2 बूंदे डाल लीजिए तो वो कोरोना को जो है ना पंचर करके आपके मुंह में ले आएगा, आप गर्म पानी से गार्गल कर लीजिए इलाज। और वो उन्होंने, इफ इट इज करेक्ट, ही सेज कि ये इतना प्रभावी है, यदि कोई गलत साबित कर दे तो हम उसे 50,000 का इनाम देंगे। आई डोंट नो वेदर आपने वो मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये जितने भी क्लेम्स हैं उनको लिस्ट करें, हर क्लेम को जो है ना प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास सैंपल बहुत ज्यादा है, हमारे पास कोई वैक्सीन है नहीं, तो हम अपनी चीजों को टेस्ट करके जो गलत है उसको कहें कि साहब ये गलत है, जो इफेक्टिव है उसको कहें इफेक्टिव है। और ना केवल पब्लिक के लिए, हम तो कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को करें। यदि हमारे पास विश्व को मदद करने के लिए है तो ये फार्मेसी की कंपनियां जो वैक्सीन को जो है बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, उनकी दादागिरी क्यों चलना चाहिए? देखिए, हमें हर जगह डिफरेंट माइंडसेट से बात करना पड़ेगी। आपके साथ बहुत अहित हो चुका है। आपके पास जो है ना गायें हैं जो कि अमृत तुल्य अल्फा 2 मिल्क देती हैं, वो जो है ना आजकल घूरों पे बैठ रही हैं, वो कटने जा रही हैं। अरे भाई, हमें तो उल्टा करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट मिल्क। हमें देखना चाहिए कि हमें गोबर कितना चाहिए, और हमें गोबर प्रोडक्शन के हिसाब से, मिल्क तो जो है ना, मिल्क और घी ये तो बाय प्रोडक्ट होंगे, हमारा फोकस होना चाहिए हाउ मच गोबर वी नीड, और उस गोबर को जो है फिर वी कैन क्रिएट इनटू फर्टिलाइजर, और हम तो कहेंगे उसको हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वी विल बी यूजिंग माइक्रोब्स, एंड यू मस्ट बी अवेयर कि देयर आर एन नंबर ऑफ माइक्रोब, जो कि जैसे कि आपकी जो दाल होता है तो उसमें राइजोम होता है, उसकी जड़ों में गांठ होती है, और वो जो है सीधे वातावरण से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन वगैरह है, उसको एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में डालती है। और यही कारण है कि पुराने समय में हमारी क्रॉप का एक रोटेशन होता था, क्रॉप रोटेशन जिसको हम कहते थे, और उसमें फसलों को एक तरीके से रोटेट किया जाता था जिससे कि हमारी सॉइल रिचार्ज हो जाए। आज हम जो है ना इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि हम उसको जो है ना दे दनादन केमिकल फर्टिलाइजर। अभी स्थिति ये हो गई है कि यदि आप हर्बल फर्टिलाइजर देंगे तो उस जमीन को जिंदा करने में हमें 2 साल लगेंगे कम से कम। लेकिन अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अभी भी हम इतना सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस थोड़ी बहुत जो प्रोडक्शन में कमी आएगी वो जो है 2 साल के बाद वो ड्यूरे प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट 0 पे पहुंच जाएगी। हम जो फर्टिलाइजर हैं वो बाहर विदेश के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए रखेंगे। हमारी पूरी खेती जो है ना वो हर्बल बेस्ड होगी, और हम उसमें वो माइक्रोब डाल देंगे, अर्थवर्म डाल देंगे। तो वो जो है एक बार आपने डाल दिया, थोड़ा बहुत आप उसको एनरिचिंग कर दें, वो पर्याप्त है। अदरवाइज आपने जो है खेत में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री डाल दी है, क्योंकि जो वर्म है यदि वो गर्मी होगी और उनके लिए उनको ठीक वातावरण नहीं मिल रहा है तो वो डोरमेंट हो जाते हैं, और जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा वो अपना जो है प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। और
वो सीधे वातावरण से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में डाल रहे हैं। फिर आप जो है उसमें अर्थवर्म भी है, सब कुछ है। तो कुल मिला के आपको जो ना केवल प्रोडक्शन मिलेगा बट उसके कारण जो हेल्दी चीज मिलेगी वो अपने आप में बहुत मायने रखेगी। अभी वो केमिकल की डोज, पेस्टिसाइड की डोज ग्रेन्स में जा रही है, अब ग्रेन्स को तो छोड़िए, अब आपको पानी में जा रही है, लिंचिंग होके इट इज गोइंग टू द वाटर। और अब वाटर को छोड़िए, अब तो अंडरग्राउंड वाटर में भी जा रही है। तो हम जब चारों तरफ से कार्सिनोनिक सब्सटेंस से गिर रहे हैं और हमारे लोगों में इतने दुष्ट लोग हैं जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है कि एक बताइए कि एक बीज है जिसका काम जो है पैदावार करना है, हम जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड कैसे पैदा कर सकते हैं? इज इट नॉट शुड नॉट बी ए क्राइम? मतलब हमारे बीज बिकें, इसके लिए हम जेनेटिकली टर्मिनेटेड बीज पैदा करेंगे। हम कितने लालची हैं, हम कितने लोभी हैं, हम कितने मक्कार हैं, हम कितने धूर्त हैं। और जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है वो उन्होंने अच्छे काम के लिए दिया था, हम इतना धूर्ततापूर्ण काम करेंगे इसके लिए बिल्कुल नहीं दिया था। इट इज समथिंग लाइक कि एटॉमिक एनर्जी है, उससे हम बम भी बना सकते हैं और उससे हम वो भी कर सकते हैं। चोपड़ा साहब, कुछ मैं आपकी बात का कुछ जवाब दे पाया या? नहीं, बिल्कुल प्राइवेसी के बारे में भी और रिलेटेड के बारे में भी। हाँ जी सर। और सर बजट जो है उसको भी देखना पड़ेगा सर, क्योंकि बजट तो गिरता जा रहा है। हम तो बजट मांग ही नहीं रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हर चीज जो है ना BBB मॉडल में जा रहे हैं, तो सरकार को तो मुफ्त में मिलेगा, तो बजट क्या है? जब जो है एक बटन सरकार जो है ना पब्लिक दबाएगी तो 1,30,000 करोड़ रुपए पैदा होंगे। यदि 10 बड़ा बटन दबा दिए तो 13,30,000, ये तो सरकार के खजाने वाली बात कर रहे हैं, इतना ही पैसा जो है ना पब्लिक में पैदा होगा। तो पैसे की तो वर्षा होने वाली है, काहे की बजट की चिंता कर रहे हैं आप? सिर्फ पॉलिसी इनेबलिंग कर दीजिए, 50% जो है ना मनी वहां चला जाए। सर्विसिंग जो है ना समन्स वारंट की, उसके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम कर दीजिए। क्राइम में कोई इनपुट देता है उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम कर दीजिए। एंड यदि सरकार को उसमें भी प्रॉब्लम है तो हम जो इंटरनल जो है वो क्रिएट करेंगे, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस दैट। अभी हम जो कह रहे हैं 50% जाएगा, फिर हम कहेंगे 10% कॉर्पस जो है ना वो नेशनल अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा, 40% हम पब्लिक को देंगे। 10% में तो इतनी वर्षा पैदा हो जाएगी कि आपको फंड संभाले नहीं संभलेगा। आप तो पड़ोसी देशों में कहेंगे साहब हमारे पास पैसा है, हम आपके यहाँ कुछ कर दें क्या? Am I sounding you logical? और या जैसे पुलिस होता है तो वो अपना कैसे भी करके जो है अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करता है, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं सर, आपका तो प्लान आपके दिमाग में सेट है, इतना मुझे क्लैरिटी आ गया है। यू आर वेरी कन्विंस्ड अबाउट योर आइडियाज। नहीं, मेरे कन्विंस होने की बात नहीं है, मैं आपके कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। सर मुझे भी आ रहा है आपका कन्विक्शन देख के, मेरे को भी कन्विक्शन आ रहा है। नहीं, आपको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। अजय सर, आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो हम और आगे बढ़ें? सर एक साइबर क्राइम का जो इशू आपने रेस किया था सर, जो स्कूल्स में अब हो रहा है कि किसी का एक फोटो बना देना और पोर्नोग्राफी को यूज करना किसी फेलो स्टूडेंट का, और सर ये सर हम पुलिस के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं अरे भाई अकाउंट तो डिलीट हो गया। तो सर आपका जो ऑटोमेशन जो डिटेक्शन होगा क्राइम में, सर क्या इसमें कोई मदद मिलेगी? ये सोशल 500%, क्योंकि वो डिलीट हो गया है, लॉग में तो सब चीज अवेलेबल है। देखिए कई बार क्या होता है, हम जो है अपनी अक्रमणता को छिपाने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेते हैं। तो यदि आपने हमको पहले सुना है तो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है साइबर सिक्योरिटी का फंडा क्रिएट किया है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना साइबर इन्वेस्टिगेशन का फंडा भी क्रिएट किया है। तो रियल टाइम बेसिस पे वी वुड बी कैप्चरिंग लॉट मेनी थिंग्स। और आगे चल के तो मेरा प्लान ये है कि हम जो है प्रोटोकॉल को जो है ना रिवाइज करें। अब इंडिया इस स्थिति में है कि हम इंटरनेशनली अपने को डिक्टेट कर सकते हैं। वी कैन से कि साइबर आपको जो है ना सर्वर हमारी लैंड पे लगाना पड़ेगा। वी कैन से कि आप जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो आपने पहले बनाए थे, दैट वाज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन, नाउ दैट शुड बी मींस ऑफ एविडेंस आल्सो। तो जब आप हमसे हाथ मिला रहे हैं, मैं तो आपके पास जा नहीं रहा हूं, हाथ मिलाने कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं। तो आपकी जो आइडेंटिटी है दैट विल बी कैप्चर्ड
and only then you will be allowed the permission to interact. तो आपके जो है ना पूरा चीजें तो हमारे पास पहले ही रहेंगी। हम जब इन्वेस्टिगेशन के बाद डाटा थोड़ी मांगेंगे, हमें तो क्लिक करना पड़ेगा और फिर हमारा सिस्टम कैप्चर करके वो रखेगा पहले से ही। Those will be mandated things. तो हमारे पास एविडेंस भी होगा, हमारे पास सब चीज होगी और इस चीजों से हम उसको बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर पाएंगे। और एक चीज हम आपको और बता दें, वट एवर अवेयरनेस हमने जो है ना क्रिएट की है, तो वहां से जो है एक तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हुआ है, चाहे वो एंटीवायरस का हो या इसका हो। कई बार हम लोग जो ना धूर्त लोग हैं टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि हम हर चीज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे ही लोग जो है ना बैठ के सिस्टम क्रिएट करते हैं और वही जो है ना एंटीवायरस बेचते हैं। अभी एक में आपने देखा होगा कि जो मंत्री जो माननीय IT मिनिस्टर साहब थे और एक व्यक्ति जो है ना वो कर रहा था, तो उसने कहा कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सब क्राइम की कैटेगरी में आता है, एंड आई एम एज ए मिनिस्टर आई एम लिसनिंग यू, आप अपना धंधा बंद करिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम किसी की मदद करते दिखते हैं उस समय भी हम व्यवसाय कर रहे हैं। तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बड़ा सेल्फिश हो गया है। अब बुद्धिजीवी लोगों को समझना चाहिए कि यूनिवर्स में हर व्यक्ति यूनिक है। देयर इज नो डुप्लीकेट अजय चोपड़ा, देयर इज नो डुप्लीकेट पीयूष दुबे, देयर इज नो डुप्लीकेट मैथिली शरण गुप्ता। तो लोग, ईश्वर ने ये जो इतनी यूनिक पर्सनालिटी पैदा की हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब है कि हम सब लोग यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। हम चाहे उसे समझ रहे हो चाहे ना समझ रहे हो, बट वी आर हियर विद सम यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया उल्टा कि इन दुष्ट लोगों ने जो है ना हमको जो है ना माया जाल में फंसा दिया, तो अब जो है हम जो है माया को करने। ये भाई किस करेंसी की बात कर रहे हैं? ये करेंसी भाई साहब आपके साथ नहीं जाएगी। आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है। यही कारण है कि जब आपका क्रिमेशन किया जाता है तो आपके शरीर से एक धागा भी निकाल दिया जाता है। देखा जाए तो आपके सूट बूट भी आपके साथ जलाए जा सकते हैं। आपकी मेहनत से है, आपको जो है ना बेआबरू क्यों करना, आपको टोटली नग्न क्यों करना? लेकिन वो शायद इसलिए करते हैं जिससे कि आपको एहसास दिला दें। और एहसास किसको दिला रहे हैं? जो मर गया वो तो चला गया है। तो जो जिंदा लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि भाई साहब एक धागा भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो भाई साहब हम इतनी बड़ी संपत्तियां क्यों पैदा कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात भी है कि यदि आप कहते हैं कि संतानों के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए कहावत है कि उपजे पूत सपूत तो किमधन संचिए और उपजे पूत कपूत तो किमधन संचिए। वो जो है ना दारू पी के रेप करके जेल जाएगा और आपका भी नाम बदनाम करेगा। तो ऐसा क्यों करना? यदि हम थोड़ा सा जो है दूसरों के लिए मौत के गड्ढे यदि हम खोदना बंद कर देंगे तो हम इस ग्लोब का बहुत भला कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर थॉट्स सर, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर। एंड सर अभी हमारे साथ एक और नए गेस्ट हैं सर। आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस हिम। वेलकम मिस्टर R.K. Jain sir. R.K. Jain sir is an ex-country head youth for Human Rights International USA. Presently he is president of Youth for Human Rights, only civilian in the country who got highest civilian award from Director General CRPF, as he briefed more than 10 lakh citizens of India about working of CRPF. Wow. By profession he is a publisher. He has attended national and international seminar, and he has also delivered a speech on human rights in United Nations, Geneva. Sir, a very warm welcome to you, sir, in this show. Kindly. Thank you very much. सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। साहब जो है आप जैसी अथॉरिटी को इस मंच पे हम पाके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं और फिर उसके साथ जो है, चूंकि हम सब में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे अनुभव हैं, तो हम कैसे उस अनुभव से बाहर निकल के एक क्राइम फ्री भारत का निर्माण करें, इसको लेके आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं मैं कोशिश करूंगा कि उसको शांत करूं। वेरी गुड सर, बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी 58 ईयर्स की लाइफ में 39 ईयर्स मैंने पुलिस के साथ बिताए हैं
और Great. ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जब कोई एक इतने सीनियर लेवल का पुलिस अधिकारी एक बहुत ही यूनिक चीज शुरू कर रहे हैं। मतलब क्राइम फ्री इंडिया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। और एक पुलिस के अधिकारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो बहुत बातें करते हैं, और अगर मैं कहूंगा एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हम हमेशा सोचते हैं कि एक आम आदमी के ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है। कभी किसी एक्टिविस्ट ने वर्दी का ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होते हुए कभी सोचा भी नहीं है कि उनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, मैं वर्दी के ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करता हूँ। थोड़ा सा मैं Great, डिफरेंट sir. टाइप Great. का एक्टिविस्ट, Great. क्योंकि मैंने अपने जवानों को पास से देखा है, उनको मैंने शहीद होते हुए देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। और जहां तक सर एक्सपीरियंस की बात है, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। जो आज इतनी अच्छी टीम यहाँ पर मैडम बैठी थी, मैडम बात कर रहे थे, रिटायर्ड डीजी सर बैठे थे, मेरे मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सभी क्वेश्चन का जवाब आप सिलसिलेवार देते गए। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आम जनता थाने में जाने से डरती है तो हम क्राइम फ्री की बात कैसे कर सकते हैं। आपने एक बात करी कि उनकी कार को छीन लिया गया और वही क्रिमिनल एसएचओ साहब के पास बैठा हुआ था। ये मैंने भी कुछ देखा है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं वर्दी के लिए लड़ता हूं, क्योंकि सभी तो बेईमान नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए हमारा देश चल रहा है। अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी हैं मैथिली शरण गुप्त जैसे, जो आज सीट पर रहते हुए मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट गुप्त साहब का कितना साथ देगी इस मिशन में, लेकिन मैं ये कहूंगा जनता आपके साथ रहेगी और आपके साथ है। बहुत मेरे को लोकल पुलिस के साथ बहुत बहुत कड़वा एक्सपीरियंस रहा है। इवन अपने केस में भी मैं एक वाकया यहाँ पर सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा और सर से जवाब भी लेना चाहूंगा। सर एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी एक टू व्हीलर वाले का एक्सीडेंट करके भाग रही थी। हमने उसको चेजअप किया और चेजअप करके आगे रोक लिया कि सर आपने एक एक्सीडेंट करा है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं करा है सर, हमने देखा है और हमने 100 नंबर मिलाने की कोशिश करी तो वहां से मेरा नेटवर्क नहीं लगा। उन्होंने बहुत अच्छे, मैं नाम बताना चाहूंगा, किसी हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी के किसी रिलेशन में थे, फोन किया और सर बहुत सारी पुलिस आ गई, वहां पर काफी पुलिस आ गई और मुझे बताया गया कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं और मैं उनके चैन तोड़ के उनको लूट कर भागने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए, एक व्यक्ति जो क्रिमिनल को पकड़ रहा है और जो वहीं खड़ा हुआ है, उसको उसके लिए कहा जाता है कि वो क्रिमिनल है और वो क्राइम करके भाग रहा था। लकीली मेरा कंसर्न एक थाने का फोन मिल गया था, तो वहां से आईओ 1 घंटे बाद आया। 1 घंटे तक पुलिस ने मुझे टॉर्चर करा और जब सारी बातें पता लगी तो एसएचओ साहब कहते हैं कंप्रोमाइज कर लो। मैं कहा नो आई विल नॉट कंप्रोमाइज। और 2 दिन बाद ही राष्ट्रीय सहारा में फ्रंट पर मेरा फोटो था, भारत के प्रेरक व्यक्तित्व में। उन्होंने मुझे 11,000 रुपए का एक चेक भी दिया था, सारा मेरा इंटरव्यू आया था। मन तो करा कि एसएचओ साहब की सीट पे ले जाके देखूं कि सर देखिए मैं एक क्रिमिनल हूं। तो सर जहां ऐसी चीजें होती हैं, जो व्यक्ति पुलिस के साथ जिंदगी लगा रहा है और लड़ रहा है, पुलिस उसको ही टॉर्चर करती है। अभी पिछले ही महीने एक छोटी सी एफआईआर लिखवाने के लिए मेरे को एसएचओ साहब को जॉइंट कमिश्नर से फोन कराना पड़ा। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम बताना चाहूंगा, डॉक्टर एनसी अस्थाना। वो यही कहते हैं कि मिस्टर जैन, लोकल पुलिस से काम 2 तरीके से होता है, या तो आप पैसा दे दीजिएगा या फिर आप बहुत बड़ी अप्रोच लेकर आइएगा। और सर बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, अब जो है अप्रोच भी बढ़ते जा रही है। वो ये देखते हैं कि आप हमारा इमीडिएट बॉस है कि नहीं। बिल्कुल आपने सर आपने बहुत ठीक कही बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एब्सोल्युटली राइट, यस आई एक्सपीरियंस दैट आल्सो। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक ही क्वेश्चन अब रह गया है, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा, मैं आपको एक याद दिला दूं। राजस्थान में एक हमारे सीनियर थे, हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है जब हम आईटीबीपी में थे, फिर हम सीआरपीएफ में भी साथ में काम किए। ही वाज डीजी राजस्थान आल्सो। उन्हें एफआईआर लिखाने के लिए मंत्री और सब रहते हुए भी और उसी प्रदेश के डीजी होते हुए भी उन्हें धरने पे बैठना पड़ा। क्या हमने यही सिस्टम पैदा किया है? अल्टीमेटली मेरे साथ अपराध हुआ है तो ये किसी दूसरे का सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है? 154
सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है ना रीइंटरप्रेट करके कहा है कि यदि उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो आपको एफआईआर दर्ज करना ही होगी। उन्होंने कुछ जगह लीवे दिया है कि यदि आपका जो है इन केसेस में आप जांच कर सकते हैं लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप जांच इस बात की करेंगे कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। हम आगे चल के आपको आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, तो अभी बीच में मैंने वैसे ही इंटरजेक्ट कर दिया था, फिर मैं आपके प्रश्न का बाकायदा सिलसिलेवार जवाब दूंगा। सर एक हमारे सिस्टम में एक कमी और है, हम जिसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं उस कंप्लेंट की इंक्वायरी उसी ऑफिसर के पास जाती है, ये कब ठीक होगा सर? Very good question, sir. it's देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया, तो हम आपके कई क्वेश्चन हैं उनको पहले भागों में बांट देते हैं, फिर हम सिलसिलेवार उसका जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि थानों में एफआईआर कैसे हो, ठीक है ना। दूसरा आपने कहा था कि साहब जो है, दूसरा आपने कहानी के माध्यम से सुनाया कि कैसे पुलिस अनफेयर होती है और राजनीतिक दबाव में वो एक अच्छे भले व्यक्ति को अपराधी जो है ना घोषित कर देती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप ठीक ठाक निपट गए, और बड़ी चीज भी कुछ हो सकती थी। बिल्कुल सर। क्योंकि यदि जो है पुलिस सबलों की है तो निर्बल कहाँ जाए, सवाल ये उठ रहा है। तो आप कैसी पुलिस पैदा कर रहे हो? अब जो है दो क्वेश्चन और, कोई क्वेश्चन भी है आपका इसमें क्या सर? ये दो क्वेश्चन के अलावा और कोई भी क्वेश्चन है? फिर मैं नहीं सर, बिल्कुल यस सर, बस इतना ही, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये है कि हम थाने जाएंगे तो हमारी एफआईआर लिखी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि थाना प्रभारी को वो एक बर्डन लगती है, उसे लगता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, उसे लगता है कि जो है, जब आपने कभी किसी पुलिस ऑफिसर को अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हुए नहीं सुना होगा, मैं आपको थोड़ा सा मिमिक्री करके दिखाता हूँ। सर वो एक अपराध हो गया। तो पुलिस ऑफिसर जब किसी अपराध की रिपोर्टिंग करता है अपने सीनियर को, तो वो अपराध भाव से ग्रसित होता है, जैसे उसने वो जुर्म उसने कर दिया। उसको ये विश्वास नहीं है कि वो कॉग्निजेंस भी ले सकता है और 100% डिटेक्शन भी करा सकता है और 100% कन्विक्शन करा सकता है। चूंकि उसे ये विश्वास है नहीं, इसलिए वो स्टेटस को कंट्रोल करना चाहता है। तो वो स्टेटस को दो तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। एक तो जो है वो अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए स्टेटस को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा जो है वो झूठी वाई लेने के लिए भी जो है करना चाहता है। अब एक ऑफिसर आया, कोई अच्छा काम तो उसने किया नहीं, और वो जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ रहा है कि साहब मेरे आने के बाद 10% जो है क्राइम कम हो गया। तो why he should say that? He should make the people understand कि साहब मैंने ये कदम उठाए जिसके कारण ऐसा हुआ। तो हम जो है लोगों को बिना अच्छी काम किए हुए ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास जादुई छड़ी है और हमने सब ठीक कर दिया है। और वो जादुई छड़ी क्या है कि अपराध का पंजीयन ना करो। फिर एक दूसरी समस्या पैदा हो गई, जब जो है जो बदमाश लोग हैं वो इतने पावरफुल हो गए कि उनका जो है ना पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी से पार्टनरशिप हो गई, तो वो आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने की स्थिति में आ गए। जैसे कि आप बचते बचते बच गए, आप लकी थे, बच गए, नहीं तो एक आध दो चार केस भी आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाते और कोई बड़ा हादसा नहीं होता। ये भी भगवान की जो है ना शुक्र है कि आपके कर्म अच्छे थे, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। तो नहीं तो आपको और भी बहुत सारे जो है ना खामियाजे भुगतना पड़ेंगे। आप जो है ने बहुत सही कहा है कि आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, वो उसी के पास पहुंच जा रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में मॉनिटरिंग ही नहीं है, सिस्टम में सुपरविजन ही नहीं है। आज का पुलिस का सिस्टम एब्सोल्युटली लेजर फेरे पे चल रहा है। हम नंबर से चलते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं एआईजी फाइनेंस एंड प्रोविजनिंग था तो मध्य प्रदेश में मैंने नंबर हटा के नाम का जो नेम प्लेट इंट्रोड्यूस की थी। आई सेड कि इट इज ए डिसरिस्पेक्ट जब हम आदमी को नंबर से जाने। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो है ना हमने उसको ह्यूमन बनाने की कोशिश की थी। अभी भी आप बहुत बड़ी बात जाइए, कई जगह पे जो है ना वो उसको मरीज नंबर से जाना जाता है। इट इज ए डिसरिस्पेक्ट। हाउ कैन यू ट्रीट लाइक दैट? तो पुलिस जो है डिप्लॉयमेंट भी नंबर से करती है।
लॉ एंड ऑर्डर है तो 5000 व्यक्ति लगा दिए फलाने पे, ये वो। अभी पॉइंट ड्यूटी लगाई तो यहाँ पे पॉइंट ड्यूटी, वहां पे पुलिस वाला क्या कर रहा है, ये क्या सुपरवाइजरी ऑफिसर देख रहे हैं? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट पर्सन? अभी आप कहीं पे भी निकल जाइए पूरे देश में, आप खुद बात किए होंगे, मैं नासिक वगैरह यहाँ पे भी गया था जब कुंभ का वो चल रहा था, अभी कुंभ वगैरह, तो मैंने पाया देखा कि सभी लोग जो अपने अपने मोबाइल पे बिजी हैं। आज आप किसी भी पॉइंट ड्यूटी में चल जाइए, उनका जो वर्दी कैसी है, कैप नहीं लगाया हुआ है, वो तो है ही है। आजकल 90% लोग कहीं ना कहीं मोबाइल पे बिजी बने रहते हैं। तो अब ये सब इसलिए हो रहा है कि वी डोंट हैव एनी मॉडल। ना तो हमने उनका कंस्ट्रक्टिव डिप्लॉयमेंट किया है, ना हमने उनको कंस्ट्रक्टिव टास्क दिया है, और ना ही हमने जो है ना उनसे अकाउंटेबिलिटी दी। हमारे जो गश्त हैं, जो पॉइंट हैं, जहाँ लगते आ रहे हैं वहीं पर लगते जा रहे हैं। अरे भाई, आज के ज़माने में हम डायनामिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर्दियों में यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, 12 बजे यहाँ पॉइंट होना चाहिए, वही व्यक्ति जाके जो ना बगल में चला जाएगा, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हॉट स्पॉट में डिसाइड द डायनामिक डिप्लॉयमेंट। तो चूंकि वो सब नहीं हो रहा है, तो पूरा खेल एक जगह जाके सिमट जाता है, वो आंकड़ों पे। तो फिर सभी लोग जो है ना आंकड़ों की बाजी गिनती कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक अपने अधिकारी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई FIR नहीं लिखी जाती है, फलाना नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो ही सेड कि नहीं सर, हमने तो जो है ना सब ऑनलाइन कर दिया है। तो मैंने कहा क्या ऑनलाइन कर दिया है? तो साहब कोई भी जाके जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। मैंने कहा आपने जैसे उसका मोबाइल गुमा या और कोई चीज गुमा, तो आपने लॉस्ट का प्रोविजन उसको दे दिया। जहां पे यदि वो चुराया नहीं है तो हम उसे क्यों नेशनली फोर्स कर रहे हैं? आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वो आपकी लॉस्ट की तो 2 मिनट में रिपोर्ट हो जाएगी, चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं की जा रही? यदि चोरी हुई है तो उसी पोर्टल पे चोरी का रिपोर्ट लिख जाना चाहिए ना। नहीं, वो लॉस्ट सर हमेशा लॉस्ट की रिपोर्ट लिखवाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। यस। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने सैकड़ों मोबाइल पकड़े, फिर उन मोबाइल को सामयावन लगा के जो है ना फरियादी को बांटा। तो मैंने पूछा कि भाई साहब, आप लोगों में थोड़ी बहुत कुछ शर्म लज्जा बची है क्या? तो उन्हें मेरे रिमार्क से बड़ा दुख हुआ कि साहब जो है ना हमारे डी साहब कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो इतने सारे मोबाइल जो पकड़े हैं हमने, मान ले सकते हैं कि कोई थोड़े बहुत गुमे उमे हो, 90% से ज्यादा तो मोबाइल चुराए हुए मोबाइल होंगे। और यदि उसको गुमा भी है तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसे जमा करना चाहिए था। तो उसने अपने पास रख लिया है, ये भी क्राइम है। उस धारा का अपराध कायम कर लीजिए। यदि आपको चोरी का नहीं करना है, आपको समझ में आता है नहीं तो बहुत सज्जन आदमी है, तो चोरी कर ही नहीं सकता है, तो इतना तो गैर सज्जन है ही कि उसने अपने पास रख लिया। हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब उसे डिटेक्ट किया, तब आपने उसे पकड़ा। और यदि वो सही अपराधी है तो हमने क्या बिना पैसे लिए उसको जाने दिया? चलो तुमने पैसा लिया नहीं लिया ये दूसरा काम है, ये इसको अपन दोनों के लिए भूल जाते हैं। व्हाट अबाउट ए क्रिमिनल हैज बीन अलाउड टू गो आउट ऑफ योर नेटवर्क? हो सकता है उसने जो है ना इसके साथ सैकड़ों और ऑफेंस किए होंगे। यदि हम उसको मैप करते तो शायद उस क्रिमिनल से हम 100 और अपराध बरामद कर लेते। ये सोच तो कहीं है ही नहीं ना। इसके लिए तो किसी के पास टाइम नहीं है। जब तक ऐसा होगा, जब तक हम आंकड़ों से डील करेंगे, तो आपकी FIR लिखी नहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि भाई जब FIR लिखी ही नहीं जाना है तो हम थाने ही क्यों जाएं? तो हमने जो सिस्टम बनाया है, वो ऐप एक बनाया है जिसका हमने नाम दिया है वॉलंटियर ऐप। ये बड़ा पावरफुल ऐप है। थोड़ा सा मैं अब आपको खोल के बताता हूँ इसके। इसमें 4 फेज हैं। पहला फेज है सिक्योरिटी फेज, मतलब 4 टैब होंगे उसमें नीचे। तो यू कैन गो इन एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस पे आपको जाना है वहाँ चले जाएंगे, और आगे चल के आपकी सोच समझ के हम अपने आप भी उस रूप में बदल जाएंगे, जैसा कि अभी हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हैं। तो पहले ऐप का जो सिक्योरिटी वाला है, इट इज प्रोवाइडिंग यू ऑल द फीचर्स so that as a responsible citizen, as a stakeholder, you can play a role. तो आपको यदि खुद कोई क्राइम हुआ है तो उसकी आप रिपोर्ट कर पाएंगे। आसपास आप जो देख रहे हैं, कई बार आप बहुत अच्छी चीज देखते हैं, आप चाहते हैं कि जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए,
तो आप उसके लिए पॉजिटिव जो है ना फीडबैक दे सकते हैं। कुछ चीज़ गड़बड़ हुई है तो आप नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, जिसकी उसको सजा मिलेगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। तो आप ये दूसरा काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक अपनी पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। मैं एसपी SRP जबलपुर था और एक कोर्स के लिए, मतलब एसपी रैंक में था, ये मेरे ख्याल से 88 की बात होगी। और मैं उसी समय ट्रेनिंग कोर्स में गया हुआ था दिल्ली में। तो रात में मैं और मिसेज गुप्ता जो है वो रेवाली टाकी जो है उस पर मूवी देखने गए रात में कनॉट प्लेस पे। और चूंकि नाइट शो था तो उस समय कुछ लिंकेजेस नहीं हुआ करते थे, तो ऑटो से ही जाना था। तो एक ऑटो वाले को हम लोग के कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तब तक जो है एक उस समय भी वहाँ 100 नंबर की गाड़ी थी दिल्ली में। तो वो 100 नंबर वाली गाड़ी जो है वो पहुंची, तो उसमें एक हवलदार साहब थे। तो मैंने उनको अपनी व्यथा बताई कि मैंने कहा देखिए ऐसा ऐसा है और वहाँ पे हमको जाना है सरदार पटेल मार्ग में और कोई जा नहीं रहा है। तो उन्होंने एक ऑटो वाले को बुलाया और उसका नंबर नोट किया और उनसे कहा कि बच्चे लोगों को लेके जाओ ठीक ढंग से। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया है। और फिर उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा। ये छोटी सी बात ने मुझे बहुत टच किया, क्योंकि यदि उसे ये एहसास होता कि इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर से वो हैंडल कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो मेरे सिर पे हाथ फेरने की जरूरत कदापि नहीं करता। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ भी किया एक भले पुलिस ऑफिसर के बतौर किया। एंड आई वाज सो मच टच्ड कि मैं नेक्स्ट डे जो है 5 बजे के बाद मैं गया। उस समय 100 नंबर का जो पूरा चीज है वो डीसीपी ट्रैफिक के अंडर होती थी। तो मैं उनसे जाके मिला और मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई वांट दिस हेड कांस्टेबल टू बी रिवार्डेड। नाउ ऐसे बहुत सारे अच्छे और बुरे केसेस आपने अभी जैसे कहे हैं, why these things should not be go as your observation so that we can take negative and positive things, right? This is the second part of it. तो पहले FIR का हो गया, सेकंड ऑब्जर्वेशन का हो गया है, फिर तीसरा इट इज अलाउइंग यू टू कलेक्ट एविडेंसेस। तो चूंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमने इजाद कर ली तो वो सब टेक्नोलॉजी मैंने इसको कम्युनिटी ऐप में भी डाल दी। मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो है आपको अलाउ करेगी एविडेंस को कैप्चर करने में। तो आप ऐप, इसमें अपलोडिंग का कोई सुविधा नहीं होगा, इसमें यू हैव टू कैप्चर थ्रू द ऐप ओनली। और ऐप कैप्चर करोगे और जो एविडेंस होगा उसको वो रियल टाइम बेसिस पे डेट एंड टाइम और लोकेशन के साथ जो है लॉक कर देगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करते हुए वो CCTNS पोर्टल पे पैदा हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्टर CBI को, मैं डायरेक्टर NCRB को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक फॉर्मल लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया कि साहब इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को आप सबमिट करिए। तो वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ना लगभग रेडी है। वी विल बी सबमिटिंग टू डायरेक्टर NCRB शॉर्टली। तो वो जो है CCTNS के माध्यम से अवतरित हो जाएगा कंप्यूटेंट अथॉरिटी में, चाहे वो थानेदार हो या वो कोई दूसरी कंप्यूटेंट अथॉरिटी हो। वो उसको देख के जैसे ही अपने डिजिटल सिग्नेचर करेंगे तो वो जो है चालान में कन्वर्ट हो जाएगा। बैकएंड इंजन आरोपी को पहचान के आरोपी के पास अवतरित हो जाएगा कि देखिए आपने ये क्राइम किया है और ये प्रूफ है, नीचे लिंक है, आप लिंक दबाइए तो पेमेंट हो जाएगा। जो भी आपके अभी वर्तमान में जितने भी पेमेंट ऑप्शंस हैं वो सब पेमेंट ऑप्शन की उसमें व्यवस्था की गई है। तो अब जैसे ही वो पेमेंट करेगा 50% मनी जो है ना ट्रेजरी में चली जाएगी और 50% मनी जो है वो वॉलंटरीली चली जाएगी। अब यदि हम 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि हर व्यक्ति 130 करोड़ लोग यदि एक बटन दबाएंगे तो मिनिमम पनिशमेंट 2000 का है, तो 1000 जो है ना शासन के पास चला जाएगा और 1000 उस वॉलंटियर के पास पहुंच जाएगा। Do you know how much money will be created? One click will be creating 1,30,000 crore rupees. शायद मुझे किसी टैक्सेशन की जरूरत नहीं होगी with that kind of the volume and we will be creating a compliant authority. जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हम उनको ग्राउंड पे ले आएंगे तो हम उन अपराधों को भी डिटेक्ट कर पाएंगे और उन अपराधों को भी पकड़ पाएंगे जिससे कि जो कि अभी पकड़ना संभव नहीं है। फिर धीरे धीरे हम उसको जन सामान्य की दूसरी चीजों में भी ले जाएंगे। अडल्ट्रेशन, आपके रियल टाइम में जो है जो आपकी पब्लिक की चीजें जो है ना गंदी बनाई जाती हैं, ठीक नहीं बनाई जाती है, मिलावट कर दिया जाता है, सीमेंट का रेशियो ठीक नहीं होता है, टार का रेशियो नहीं होता है। आप देखिए पहले जो है इतना अच्छा टार डाला जाता था
कि मुझे याद है कि गर्मियों में हमारी गाड़ी चिपकती थी। Yes. आजकल जो है जो रोड बनते हैं उसमें टार दिखते ही नहीं है, और जैसे ही पानी आता है ऊपर की लेयर खत्म हो जाती है। तो ये जो बंदरबांट हो गई है इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो एनीवे अभी बंदरबांट की बात छोड़ते हैं। मतलब इस तरीके के 4 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना पब्लिक को मिल रहे हैं। एक बाय कैप्चरिंग एविडेंस, दूसरा जो है जो समन्स वारंट वगैरह की तामीली करेगा उसके लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम होगी। तीसरा जो है वो क्राइम के बारे में जो इनपुट देगा उसको बैकएंड इंजन जो है ना रोटेट करके ढेर सारे क्राइम से मैप करेगा, और उसको उन सभी क्राइम के का जो है ना रिवार्ड उस व्यक्ति को जाएगा जो मैपिंग से आएंगे। तो आपने एक इनपुट दिया, हमने मैप करके उसको 200 क्राइम तक खींचा, और 200 क्राइम को यदि हमने 100 रुपए के हिसाब से यदि रिवार्ड दिया तो उसको 20,000 रुपीज का कैश अवार्ड मिलेगा। नाउ दैट इज द थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम। एंड फोर्थ रेवेन्यू स्ट्रीम, द सिस्टम वुड बी हेल्पिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन देयर निश एरिया ऑफ वर्क। तो यदि फार्मर है तो उसको बीज से लेके खाद से लेके फसल बिकवाने तक का हर काम करेगा, और वो भी उससे पैसा नहीं मांगेगा। पैसा जब जो उसका अच्छे दामों में फसल बिक जाएगी तब उसको जो है ना वहां से पैसा जो है वो लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो हम उसके निस प्रोफेशन में भी, चाहे वो हाथ ठेले वाला हो, चाहे वो पान ठेले वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर किसी को हम उसमें भी रेवेन्यू स्ट्रीम ला के देंगे। तो ऐसे 4 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना पब्लिक को मिलेंगे। ये तो हो गया सिक्योरिटी पेज। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज पे, दैट विल बी द नीड पेज। तो आम आदमी की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अब उसके लिए बहुत सारे ऐप की जरूरत नहीं होगी। ये वॉलंटरी ऐप में वो सब आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी। चाहे आप ट्रेन रिजर्वेशन कराएं, चाहे आप जो है ना कहीं से खाना मंगाएं, वो सब चीजें जो है नाउ दैट विल बी अवेलेबल इन कम्युनिटी ऐप, इन ए सिक्योर्ड ऐप, जिससे कि आपको किसी असुरक्षित ऐप के आधार सहारा नहीं लेना पड़ेगा। देन थर्ड ऐप वुड बी द निश नीड ऐप। जो भी हमने कहा है कि जो आपको आपके निश एरिया में रेवेन्यू मिलेगा, वो इस निश नीड ऐप के जो इस वाले जो टैब से वो आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी। तो जैसे जिन करिए कि आप हाथ ठेले वाले हैं, तो आपको हाथ ठेला किराए पे चाहिए, तो वो हाथ ठेला वो भी आपके रिक्वायरमेंट का। और हमारी जो बैकएंड टीम है, जो कि स्टार्टअप्स की टीम होगी, वो आगे चल के हर चीज में जो है ना इनोवेटिव डिजाइन लेके आएगी, तो हम आपके काम में भी मदद करेंगे। तो दैट इज द थर्ड टैब। Then we are employing the engine like Google's, and we will be identifying your information need. तो आप यदि स्पिरिचुअल है तो मालूम पड़ा आपको स्पिरिचुअल कंटेंट परोस दिया जाएगा। जो भी आपकी आवश्यकता है, so we will take care of your information need also. So now let me summarize. We are catering for your security need, we are capturing for your general need, then we are capturing or serving or satisfying your niche need, and then we are catering and satisfying your information need. अब आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि हमारी सोच की जो उड़ान और कार्य करने का जो कार्रवाई है वो बहुत ज्यादा है, और ये सब चीजें मुफ्त में पैदा हो रही हैं, क्योंकि 47 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रही हैं। 3-4 यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी प्रपोजल हमारे पास पड़े हुए हैं। दे वांट टू डू MOU विद अस। अभी बिट्स प्लानी बहुत जल्दी हमारे साथ MOU साइन करने वाली है। अभी भिलाई का जो है ना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे वहाँ साथ साइन करने वाला है। अभी हम साउथ के कुछ और यूनिवर्सिटीज पे जाना चाहते हैं। तो अभी हमारी स्थिति ये हुई कि आज कोई चीज सोचते हैं तो उसके 7 दिन के अंदर हम उसको एक मॉड्यूल में के रूप में कैप्चर करने की स्थिति में है, क्रिएट करने की स्थिति में है। दैट काइंड ऑफ द टेक्निकल कैपेबिलिटी वी हैव एक्वायर्ड। तो हम न केवल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम लोग गैजेट्स बना रहे हैं, हम प्रोसेसेस बना रहे हैं। आगे चल के हमारे स्टार्टअप एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम बड़ी संख्या में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, जिसमें वुमेन, गर्ल्स एंड ट्राइबल्स और बाकी सब लोग आते हैं, इनको एम्पावरमेंट के लिए बढ़त काम कर रहे हैं। ये लोग इतना रेवेन्यू पैदा करेंगे, इंक्लूडिंग द सीनियर सिटीजन, ये लोग इतना रेवेन्यू पैदा करेंगे कि इनको किसी को जो है ना सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूछेंगे कि सरकार बताए कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा पैदा करेंगे। मतलब हम उसको इस ढंग से कह सकते हैं कि भगवान मेहरबान होने वाला है और भारतवर्ष में धन की वर्षा होने वाली है। यहाँ पर दूध की नदियां बहने वाली हैं, हम सब लोग स्वस्थ रहने वाले हैं। ऐसा भारत का निर्माण होने वाला है। इसलिए हम कई जगह कहते हैं we will change the face and fate of our country. Wonderful, sir.
सर इंडिया पुलिस को मैंने आपकी 150 बात का साल से जवाब ठीक से दिया या नहीं दिया? मेरी बहुत अच्छा है सर, मैं वही कहने जा रहा हूँ सर, मैं वही कहने जा रहा हूँ। इंडिया पुलिस को 150 साल से ज्यादा हो गए हैं और 150 साल के अंदर आप एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं इंडिया पुलिस में। आप एक इंडिया पुलिस में आइकॉन होंगे। तो मेरा आपसे ये एक छोटी सी बात है, क्या भारत सरकार आपके इस मुहिम में आपके साथ है, या वही जो इंडिया में होता है कि एक दूसरे की टांग खींचनी है, कोई बहुत तरक्की कर रहा है, देश के लिए बहुत कुछ सोच रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है और आप एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मेरा आंसर है हाँ और ना, क्योंकि हम लोग उस जगह के देश के वो हैं कि हमारा कमेंटेटर कहता है कि हम जीत भी सकते हैं, हार सकते हैं, तो हम लोग एक आंसर देने के आदी नहीं है, तो हमें हाँ और ना दोनों देना पड़ेंगे। तो पहले हम हाँ का जवाब, पहले हम थैंक यू वेरी मच सर, फिर हम ना पे भी आएंगे। यू आर अवर मोटिवेटर। थैंक यू। आपने मुझे आज एक नई शक्ति प्रदान करी है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना कि कैसे हो रहा है। हमने जो है इसमें सभी को लिखा, अपने होम सेक्रेटरी को लिखा, उन्होंने इसको जो है बीपीआरएनडी को भेजा। हमारे 2 इनिशिएटिव इस समय नेशनल पुलिस मिशन के रूप में रिकॉग्नाइज हैं। एक है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम फॉर रेलवेज क्राइम, और दूसरा जो है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विद द 21 टेक्नोलॉजी फॉर क्राइम फ्री भारत। ये दोनों इनिशिएटिव नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्य है। अभी यदि आप इसी चैनल पर जाएंगे तो एक पीयर ग्रुप रिव्यू हुई है, उसको जरूर आप देखिए कि हमारे अधिकारियों की सोच कितनी संकुचित और बेकार है। यह भर्त्सना योग्य है। मतलब हमारा ही एक कनिष्ठ अधिकारी, हमारा ही एक कनिष्ठ कलीग हमसे ये पूछता है कि मैंने उससे पूछा कि क्या जो है आज एफआईआर लिखी जा रही है, क्या हम अच्छे ढंग से विवेचना कर रहे हैं, क्या हम अच्छे ढंग से सुपरविजन कर रहे हैं, क्या हम कोर्ट में ठीक ढंग से केस को पेश करके सजा करा पा रहे हैं। हर चीज का जवाब ना था। लेकिन उस अधिकारी ने मुझसे कहा कि लेकिन सर आपका प्रोजेक्ट हमें क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जब आप कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब आपको हमारा प्रोजेक्ट क्यों नहीं चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जैन साहब कि आप प्लीज जो है इसमें सर्च करिएगा, एक पीयर ग्रुप रिव्यू का लाइव जो है वीडियो है, जो कि पीयर ग्रुप रिव्यू का लाइव वीडियो, उसको आप सुनिए ध्यान से। वो आप हम लोग की सोच और संक्षिप्तता को दर्शाता है। जी जो है ना, उन्होंने कहा कि साहब आप जो है ना, कौन आपसे डाटाबेस शेयर करेगा। तो मैंने कहा मैं तो किसी से डाटाबेस मांग ही नहीं रहा हूँ। बोले नहीं साहब आपसे कोई भी डाटाबेस नहीं होगा, यू डोंट नो कि व्हाट इज द प्राइवेसी रूल। जैसा कि अभी हमारे बड़े बंदे ने कहा, वो ये वाज काइंड इनफ टू एग्री विद मी। तो ऐसे उसने कहा कि साहब वो प्राइवेसी है, ये है, आपको जो है ना आधार कार्ड आपको डिजिटल सिग्नेचर में मदद नहीं करेगा। तो मैंने कहा भाई डिजिटल सिग्नेचर तो एक सेवा है, जब वो प्राइवेट कंपनी की मदद करेगा तो वो सेवा हम भी ले लेंगे। यदि वो हमसे काइंड नहीं होंगे तो हमसे पैसा ले लेंगे और क्या करेंगे। इट इज ए सर्विस, हम उनके डाटाबेस को थोड़ी शेयर कर रहे हैं। नंबर 1। फिर मैंने उनसे कहा कि हम जो भी मांगेंगे वो 91 सीआरपीसी के तहत मांगेंगे। आज हमारी पुलिस इसलिए कमजोर है क्योंकि हम 91 वायलेशन के लिए उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि 91 वायलेशन जो है ना कैसे जो है ना लोगों को ठीक करता है। तो मैं एसपी मंडला था, मेरे प्रोडेसेसर ने जो है ढेर सारे क्राइम, चूंकि ट्राइबल जिला है तो ढेर सारे घपले होने होते हैं, तो फर्जी इंडस्ट्री, फर्जी लोन, ऐसे ढेर सारे केसेस थे। और कलेक्टर चूंकि बहुत अच्छी थी तो उसने जो है वो सब केस जो है ना रजिस्टर कराए हुए थे। और तब तक हमारे जो है प्रोड्यूसर का जो है ट्रांसफर हो गया और मैं उनकी जगह पहुंचा। तो मैं पागल आदमी हर जो है सप्ताह केसेस का रिव्यू करूं और हर सप्ताह में अपने कलेक्टर को डीओ लेटर लिखूं कि भाई आपने केस रजिस्टर कराए हैं, मुझे आप डॉक्यूमेंट दीजिए। तो मेरे पत्र के तारतम्य में हमारी कलेक्टर साहिबा बहुत अच्छी थी, सुरंजना रे जी, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी महिला हैं, बहुत ही अच्छी अधिकारी हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। मैं आज ओपन मंच से उनकी सराहना करता हूँ। तो उन्होंने जो है ना हमारे हर पत्र को बड़ी गंभीरता से लिया, उन्होंने भी डीओ लेटर लिखे उस पर। तो उनके डीओ लेटर से कमिश्नर इंडस्ट्रीज बहुत कुपित हो गए। एक दिन उन्होंने मैडम सुरंजना रे को सम्मन किया और उनको बहुत डांट लगाई। तो मैडम सुरंजना रे उनकी डांट से इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने कहा देखिए आपके जनरल मैनेजर्स ने स्कैम किए हुए हैं, हमने कोई स्कैम नहीं किया हुआ है, आप कृपया जो है अपने अधिकारियों को संभालिए और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, आप इस ढंग से मुझसे पेश नहीं आ सकते हैं और मैं जा रही हूँ। वो खड़ी हुई और बाहर निकल गई।
लौट के आई, जब मंडला पहुंची तो बहुत दुखी थी। उन्होंने सीधे मुझे फ़ोन लगाया, बोले एसपी साहब ये हमारे साथ हुआ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा मैडम मुझे नहीं मालूम था कि इतना जो है ना बुरा चीज़ है, तो अब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आज के बाद मेरा कोई भी डीओ लेटर आपको नहीं मिलेगा। तब से मुझे कानून की किताब खगलने की बीमारी लग गई, तो उस कानूनी किताब में मुझे एक 91 सीआरपीसी की धारा मिल गई। मैं आपके सामने कॉन्फेस करता हूँ, तब तक मुझे 91 सीआरपीसी मालूम ही नहीं थी। तो उसमें जो है वो हमारे बड़े काम की चीज़ निकली। तो हमने उर्दू की एक किताब निकाली और फिर हमने ऑर्डर की जगह उस पर लिखा हुक्मनामा, और उसमें अल्फाज इस तरीके से लिखे, आपको 91 सीआरपीसी की दंड संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपको हुक्म दिया जाता है कि ये दस्तावेज इतने बज के इतने मिनट पर लेके थाने पे पहुंचे। यदि आप किसी के माध्यम से भी ये दस्तावेज पहुंचा देते हैं तो कानून की मंशा पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको यह भी अदाय करना चाहते हैं कि इस का जो है ना उल्लंघन इन धाराओं के संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध है। और हमने एक अपने सबसे कनिष्ठ जो है अधिकारी को चुना, सब इंस्पेक्टर को, और उसको भेजा, और वो उसको लेके जो है कमिश्नर साहब के पास पहुंचे। कमिश्नर साहब के सामने जाके सलूट किया जोर से और कहा कि साहब देखिए मेरे एसपी साहब ने आपके लिए हुक्मनामा भेजा है। तो वो हुक्मनामा जो है उन्होंने देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने हमारे उस नए सब इंस्पेक्टर को बिठाया, उसको चाय पिलाई, अपने कनिष्ठों को बुलाया और कहा कि सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इनको जो भी चाहिए सब दे दीजिए। वो जो है 2 3 4 5 6 बस्ते बांध के लेके पहुंचा। बोला सर मैं तो नया अधिकारी हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं, मुझे जो भी समझ में आया वो मैं सब सील करके ले आया हूँ, और आपको जो है ना देख लीजिए, यदि आपका काम, आप यदि मुझे पुनः आदेश देंगे तो मैं फिर जाऊंगा। तो फिर मैंने अपने उन अधिकारी को बताया कि 91 का वायलेशन जो है के लिए हम अपने अधिकारियों को प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी किसी विभाग के मालिक हैं, इसलिए उनके दिमाग खराब हैं। जिस दिन हम उनको प्रोसिक्यूट करना चालू कर देंगे उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। फिर हमने अपने अधिकारियों को कहा कि आप जो है ना 91 तक ही अकेला सीमित मत रहिए, उसके बगल में और भी सेक्शंस हैं, एक 93 है, एक 94 है, जो कहता है कि वारंट लेके आप सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। और वो उसमें ये भी है कि जहाँ पे जो है आपको लगता है कि दस्तावेज खुद हो जाएंगे तो उसमें आप तत्काल जाके सर्च करिए। तो हमारे पास तो सर्च के लिए हनुमान जी हैं, हम अपने पुलिस को हनुमान जी कहते हैं, और वो जो है ना श्रीलंका जैसे जाएंगे और जो हनुमान जी ने श्रीलंका में किया वैसे ही वो जो है ना करके सब सामान उठा के ले आएंगे। और हमारे हनुमान जी को ये बात समझ में आती नहीं है कि संजीवनी क्या है और पहाड़ क्या है, तो वो पहाड़ को पूरे हिमालय को उखाड़ के ले आएंगे कि भैया टेक्निकल टीम के सामने रख दिया, आप इसमें से संजीवनी है वैद्य साहब आप निकाल लीजिए। जब हम 93 और 94 का यूज करेंगे तो किसी के बाप में औकात नहीं है कि वो आपको दस्तावेज उपलब्ध ना कराए। वो सीईओ सैक कर दिए जाएंगे जिनके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान जो है ना कंपनी को होगा। ये सब लोग सिर्फ इसलिए शेयर बन रहे हैं कि हमने अपने आप को गीदड़ बना लिया है, हमने अपने आप को जो है ना बहुत कमजोर मान लिया है, हमने कानूनी शक्ति का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया है। जिस समय हमें सही नियत से ट्रांसपेरेंटली इफेक्टिवली इन शक्तियों का यूज करना आ जाएगा, जो कि ये सिस्टम ला रहा है, तो ना तो विकास दुबे पैदा होंगे, ना ही ऐसे अधिकारी पैदा होंगे जो 91 के जो है ना सम्मन्स को, 91 के जो है ना हुक्मनामे को जो उल्लंघन कर दे। ऐसी औकात किसी भी अधिकारी की नहीं होगी, वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो। Great, sir, great. तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ही जो है ना जूनियर कलीग, आप उसको सुनिए, मैं आपको सुन के बड़ा ताज्जुब कि दिस इज अवर मेंटालिटी। तो अब एक बदलाव का समय आ गया है और ये निश्चित तौर पे होगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने डिजाइन कर दी है, चीजें बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं, किसी का पैसा नहीं लग रहा है। जो चीजें हार्डवेयर के फॉर्मेट में आ रही हैं वो स्टार्टअप के थ्रू आ जाएंगी। स्टार्टअप भी यही बच्चे बनाएंगे जो एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ना केवल वो अपराध मुक्त भारत के लिए बल्कि वो हर व्यवसाय के और हर सेक्टर के लिए वो बना रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स के लिए IoT डिवाइस बना रहे हैं जिससे एक्सपर्ट लोग जो ना रियल टाइम बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर पाएंगे। हम अपनी प्रोसेसेस को रिडिजाइन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे ये बच्चे हैं, ढेर सारे रिसर्च पेपर लिखेंगे, ढेर सारे पेटेंट्स होंगे। अभी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं अजय जरे साहब, एक में हम लोग
एक पुरस्कार में हमने उनको वितरण समारोह में, अवार्ड सेरेमनी में, सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी में उनको बुलाया। तो उन्होंने जो फिगर बताया इट वाज माइंड बाउंडिंग। उन्होंने कहा कि साहब 3.5 मिलियन जो है वो पेटेंट्स की एप्लीकेशन चाइना से है और करीबन 3 लाख का जो है एप्लीकेशन अमेरिका से, और इंडिया की जो है ना सिर्फ 47 इंडियंस की जो है ना 47 एप्लीकेशन है पेटेंट्स और उस सब की, और उस 47,000 में भी 67% जो है वो एनआरआई की है। तो यदि हम 47,000 में यदि हम 67% निकाल दें तो 33% बता। इसका मतलब है हम उसको 47 की जगह 50,000 मान लेते हैं और इसको 30% मान लेते हैं, तो 15,000 जो है पेटेंट्स केवल 130 करोड़ लोगों की उसमें इतनी एप्लीकेशन आई हैं, कितने पेटेंट्स मिलेंगे और वो एप्लीकेशन भी कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आई है। तो अब इस समय आ गया है कि हम जो है चाइना को भी मात करें, और अब इस समय आ गया है कि जब हम इंडियन ग्रोथ रेट को 2%, 4%, 5%, 6% की बजाय 25% और 50% की बात करें, माय फ्रेंड इट इज डूएबल। जब जो है ना यहाँ चारों तरफ धन की वर्षा होगी तो जो भी लैंड है, चाहे वो नदियों के किनारे हो, चाहे रोड के किनारे हो, चाहे डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो, वो सैटेलाइट इमेजरी से आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एक मॉड्यूल उस पर भी काम कर रहा है। हम वहाँ पर जो है हर्बल प्लांट्स, फ्रूट्स प्लांट्स, फ्लावरी प्लांट लगाएंगे। हम वहाँ पे जो है ना गाय के लिए अच्छे से जो है चारा और वो सब पैदा करेंगे। हमारी गाय केवल चारा ही नहीं खाएगी बल्कि हर्बल मेडिसिन वाली चीजें भी खाएंगे, जिससे उसके दूध में मेडिसिनल वैल्यू भी हो, और वो जो है हवन का भी वातावरण होगा, उसे मंत्रों का उच्चारण भी होगा, और हमारा फोकस गाय के दूध और घी से ज्यादा उसके गोबर पे होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, आप सब लोगों को भी मालूम है कि लक्ष्मी जो है वो गोबर में निवास करती हैं। ये मूल मंत्र हम लोग कहीं भूल गए हैं। यदि हम पूरी कंट्री के लिए जितना गोबर चाहिए उसको सर, आई वेलकम बैक सर, वी आर वेटिंग फॉर यू। और थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। तो मेरे ख्याल से जैन साहब आपकी बात का मैंने शायद जवाब दे दिया होगा। बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट गेस्ट को जो है अटेंड करें, और जुड़ने के लिए जो है मैं आपका आभारी हूँ जैन साहब, और मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि आपका सहयोग मिलता रहेगा और हम लोग सभी लोगों की शक्ति का यूज करके नए भारत का निर्माण करें, जहाँ हम अपने आप को अच्छा सर, I think we should request from Mr. Admin to ask any questions if there is some questions. So I will read it out. Yes, sir. There is one question asked by Mr. Rakesh Srivastava. He is saying that, sir, you have very rightly pointed out that at present our approach is to track crime and criminals after the crime has happened. However, our approach should have been proactive. Sir, how do we deal with this? बहुत ही सुंदर सलाह है, और इस मिशन का जो चौथा चरण है जिसमें हमने कहा है सर्टेनिटी और प्रिवेंशन, वो सर्टेनिटी इसी पॉइंट पे फोकस है। तो राकेश, we are really grateful for your suggestion and we really appreciate it, and we are in 100% agreement कि ये तो हमको करना ही होगा, और इसीलिए हमने इसको चौथे टीम का तौर रखा है, and we will do as a certainty, not as a process but as a certainty. Hello. Yes, please. Hello, sir. There is another question. Hello. मेरे ख्याल से जो है जल्दी से आप जो है, बहुत सारे आपके गेस्ट वेट कर रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा मौका दे दीजिए जिससे कि हर कोई निराश ना हो। नहीं तो बिल्कुल साहब हमको भरोसा दिलाया था कि हम उनको स्ट्रीमिंग इनमें लेंगे, और तो मेरा रिक्वेस्ट है आशीष जरा प्लीज ब्रिंग अदर गेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। Admin, kindly allow other guests also, please. Sir, in the meantime, there is one question I can ask. Sir, there are no more guests. Yeah, please, आप पूछिए। Okay. So then there is one question which is reflecting on our screen,
and that question is as follows. It is by Mr. Chaurasia. He is saying that, in my view, the biggest problem is the nexus among criminal police and politician. Your technology and app will hamper the nexus. In such situation, do you think that politicians will implement it? जब 130 करोड़ लोगों की जो है ना घंटियां बजेंगी ना, तो पैरों को भी सुनाई दे जाएगा। तो 130 करोड़ लोगों को अपनी छत पे और चबूतरों पे जाके थाली बजाना होगी, जिससे कि बहरों को सुनाई दे जाए कि अब जनता जाग गई है और ऐसे सिस्टम को चाह रही है। वंडरफुल। यदि हम ये थालियां नहीं बजा पाए, तो चाहे थाली बजाएं या ताली बजाएं, यदि ये ताली और थाली नहीं बजी तो आपको पक्का नहीं मिलेगा, आपको 200% नहीं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ऐसा सिस्टम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू। Correct. Sir, I think then today we should wind up this session. And before winding up, I want to thank all the eminent guests which we have today on our show, starting from Mr. KB Singh sir, ex-DGP Odisha, Miss Sreshi Kuwar, advocate practicing in Supreme Court, Mr. Ajay Chopra, Secretary and Administrator of St. Francis Xavier School, Kolkata, and Mr. R.K. Jain, sir. Sir, we are literally impressed by your contribution at so tender age and with your practical questions. And sir, before closing it up, I just want to say some important points which we have discussed today. Today, our webinar was basically on one aspect, that was preventive measures. That, and in dealing with that, you have very elaborately explained that Lifafa culture must go, and I think this should be a tagline of today's webinar, that Lifafa culture must go. Then we have also discussed about revenue sharing, then taking off posting by giving money, and you have also said about responsibility. Here, when the question of responsibility comes, we should not forget about Article 15(1)(a) of Constitution, which talks about fundamental duties. And one of the fundamental duties of the citizen of the country is to perform their duties with the 100% competence and ability which they have. So I think this responsibility has to be read with Article 15(1)(a) of fundamental duties of Constitution. We can harmonize both these things. Then you have also covered the question related to right to privacy, how this technology and this app will not hamper the right to privacy of any civilians. Then second is you have also focused on the job and services, various job and services, inculcating good habits, utilizing our own fertilizers, and then R.K. Jain sir has very rightly pointed out the practical difficulties in lodging of FIR, and by sharing his own personal experiences, which I think nobody does on the live platform at least, but he was courageous enough to do so. And I want to congratulate him for that courage. And you have also talked about good conduct of police and bad conduct of police. What are the weakness and what are the strengths of the police, and how we should it harmonize with various sections of CRPC, starting from section 91, 94, 95, then various sections, section 65B of Evidence Act, then entry 65C of list 1 of schedule 7 of Constitution. Then you have also informed us today about 2 apps which you have already developed, which is functioning, that is GRP app and automated investigation support system. So with this, sir, today I am thanking all the guests which we have, and today's 2 important things I want to point out, sir, that today we had 4 guests, and all the 4 guests belongs to 4 different streams. One belongs to your own department of same posts. Second belongs to the legal department. Third, sir is from he is great social activist and a world famous person, having a unique person in India, having only got a medal from CRPF. So we are delighted to have him here. And then
we have one educationist, Mr. Ajay Chopra, and he is also a lawyer. He did his masters from. He's also completed his masters from IIM Calcutta. So we had 4 guests from 4 different fields. So and we have faced their questions, and very explicitly you have answered their questions. And apart from that, with your all your blessings, even I was also there as a moderator. So thank you again for this, sir. And we will expect that on next Monday when we will come, we will have similar type of diversified guests on our shows. Thank you, sir. श्योर हमारे बहुत सारे गेस्ट ने हमको रिक्वेस्ट किया था, बट समय के कमी के कारण हम उनकी रिक्वेस्ट को अगले सोमवार के लिए टाल गए हैं। हम उन सभी को अगले सोमवार को मौका देंगे। कुछ गेस्ट जो है कि काफ़ी लंबा खिंच गया है तो वो शायद वेट नहीं कर पाए हैं, उनको भी हम अगले सोमवार को मौका देंगे। और इसके साथ ही जो है मैं सबसे ज़्यादा जो है अपनी एडमिन टीम को और पीयूष जी आपको और जय साहब आपको, बाकी सभी गेस्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बृहद जो है कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग, आपने अपना पूरा जो है ऑफिस और अपनी पूरी एनर्जी इसके लिए लगाई है, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेंगे, जहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना 2%, 4% और 6% नहीं होगा, बल्कि 25% एंड अबव होगा। तो हम केवल अपराध मुक्त भारत की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम नए भारत की बात करेंगे। बी टुगेदर वी विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय। विकास।